This is the only program that you will need for your entire journey. This is not strategy of a subject. These are 5 principles जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं. Right. अगर ये 5 प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखोगे तो आपका वैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस डबल से ट्रिपल हो सकता है. There are many educators who are talking about all these elimination tricks on YouTube, है ना? ऐसा नहीं है मैंने नहीं बात करी उस बारे में या शिविन सर ने बात नहीं की होगी. But what I have seen is there are certain teachers who are over emphasizing it. We think कि बिना कंटेंट के हम एलिमिनेशन ट्रिक से कुछ मैडनेस अचीव करके प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे. And this is not going to happen. Although I am not supposed to tell you this right now, but I can that more than 650 of our students have again cleared means this year. अगर मैं भी आपको आके कह रहा हूँ ना कि I can teach you ancient history in 2 hours, complete current affairs in 8 hours, ठीक है, तो उस वीडियो को बस डिसलाइक करना YouTube पे और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना. Hello and good afternoon and welcome to this orientation session of Prelims Navigator. A very good afternoon to everybody. I hope you can all see and hear me. Hello and good afternoon. Good afternoon, everyone. I hope video and audio is running fine. कैसे हैं सब लोग? संजय, सुरेंद्र, यश, पूजा, शान, ऐश्वर्या, कैसे हैं सब लोग? रितिका, मंशु, तन्मय, अंकन, रोहित. Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Hope everything is running fine. I hope audio video is fine. You can see and hear us clearly. All right. We are doing fine. Thank you very much. Thank you for asking. Join करने देते हैं सभी लोगों को. We'll start in a minute. Let everyone join. कैसे हैं सब लोग? मनोज, नंदिनी, उपासना, दीपक, मोहित, पल्लवी, सीमा, अमित, रितु. Good afternoon, everyone. All right, guys. So I think the time is right for us to now start. So firstly, welcome and thank you for being here. This is the orientation session of the Prelims Navigator program, and I can guarantee to you that for your prelims preparation for UPSC 2026, this is the only program that you will need for your entire journey. प्रीलिम्स में आपको जो भी चीज़ का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, सीसैट हो, टेस्ट हो, मेंटरशिप हो, पीवाईक्यूज हो, एमसीक्यू सॉल्विंग हो, all of it is here. Today I just want you guys to listen carefully. In this entire program, ये सबसे important क्लास है ताकि आप ये समझ सको कि इस प्रोग्राम को यूज कैसे करना है, right? So that you know how to use this program. Today is the most important class of this session. This entire program depends on how you listen and understand what we are telling you today. Right. देखिए ओरिएंटेशन सेशन को हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं. स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं. Right. ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है? हम आपको ओरिएंट कर रहे हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रीलिम्स रिवीजन जर्नी. और इस Right. प्रोग्राम में जो भी हमारे डिलीवरेबल्स हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, तो प्लीज लिसन टू अस वेरी केयरफुली इन दिस सेशन. एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स रिवीजन की स्ट्रैटेजी और अगले 6 महीने का रास्ता हम आपके लिए चॉक आउट करने वाले हैं आज के सेशन में. ठीक है, तो Right. ध्यान से सुनिए. आपके जो भी डाउट्स हैं we will take up those doubts at the end of the session. And I'm also very sure कि जो डाउट्स आप चैट में लिख रहे हो उनमें से कुछ बचेगा नहीं. Right. We also know you have these questions. Right. Right? तो हमें भी पता है कि आपके ये क्वेश्चंस हैं and they will get solved. I just expect some patience from you. Right? 1 घंटे की पेशेंस रख लो. 6 महीने का प्रोग्राम है. Right. 1 hour is not a big demand. 1 hour of patience, and after that 1 hour, I am sure you will be very clear as to whatever is going to happen here. Right? So I'm just going to turn off the chat now, ताकि एक कंसोलिडेटेड तरीके से हम समझ सकें हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू रन. अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको पूरा आइडिया भी रहेगा एंड यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ टू रन. आई नो आपके जो डाउट्स हैं, मींस का बैकलॉग, एमएमपी से मिक्सचर, फाउंडेशन से सिंक, वी विल हैंडल ऑल ऑफ इट. थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टर्न द चैट ऑफ नाउ. एक बार सब यस बोल दो कि हम 1 घंटा ध्यान से सुनेंगे. तो चैट में यस लिख दो कि 1 घंटा तो दे सकते हो ना. तो 1 घंटा बोल दो कि 1 घंटा हम ध्यान से सुनेंगे. Done. Shall we start? ठीक है, एक बार यस लिख दो. थैंक यू गाइस. सो आई एम जस्ट टर्निंग द चैट ऑफ. ऑल राइट.
ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आज के सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, आप में से काफी लोगों ने प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा सारथी है इसका नाम सुन के, शिविन सर का नाम सुन के, मुदित सर का नाम सुन के, वरुण जैन का नाम सुन के, और शायद आपको अभी कोर्सेज के फीचर भी डिटेल में नहीं पता होंगे, है ना? राइट। तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन बाय एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें हम आपको कवर कराने वाले हैं, एंड देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन योर माइंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स रिवीजन। वो क्या एस्पेक्ट होंगे? देन एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस डे वाइज शेड्यूल, आपका इस वीक के क्या टारगेट है, किस तरीके से आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक तो है, दो पार्ट्स हैं इस सेशन के। सबसे पहले ब्रॉड रोड मैप फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, एक ब्रॉड रोड मैप 6 मंथ्स के लिए जो हमें रखना है वो है। एंड देन उसके बाद वी विल हैव द सेकंड पार्ट विच इज के नेक्स्ट 7 डेज में हमें क्या करना है, क्योंकि ये 7 डेज वाले सेशन आपके हर 7 डेज में होंगे, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट। ठीक है। एंड ताकि आपको पता है प्रीलिम्स नेविगेटर में देयर आर 3 वर्जन्स, सो दैट एवरीबडी नोज व्हाट फीचर्स दे आर गेटिंग, वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स वंस, सो दैट सबको सब कुछ क्लियर हो। आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एक नोटबुक निकाल के रख लें और जो जो बातें हम बोल रहे हैं वो आप लिख लें। अगेन आई विल एम्फसाइज टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस एंटायर कोर्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। So we will start firstly with prelims strategy. Now this is not strategy of a subject. These are 5 principles जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। राइट। अगर ये 5 प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखोगे तो आपका वैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस डबल से ट्रिपल हो सकता है। तो सर लेट्स डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स। राइट। पहला प्रिंसिपल ये है, डोंट गैम्बल ऑन एलिमिनेशन। सर क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? राइट, देखिए इन लास्ट 3-4 years व्हाट आई हैव सीन इज, जब से ये YouTube का ग्रोथ हुआ है स्पेसिफिकली, देयर आर मेनी एजुकेटर हु आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एलिमिनेशन ट्रिक्स ऑन YouTube, है ना? ऐसा नहीं है मैंने नहीं बात करी उस बारे में या शिविन सर ने बात नहीं की होगी, बट व्हाट आई हैव सीन इज देयर आर सर्टेन टीचर हु आर ओवर एम्फेसाइजिंग इट। वी थिंक कि बिना कंटेंट के हम एलिमिनेशन ट्रिक से कुछ मैडनेस अचीव करके प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप खाली एलिमिनेशन ट्रिक पे रिलाय कर रहे हैं तो कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है प्रीलिम्स क्रैक करने का। कंटेंट इज योर बैकबोन, है ना? विदाउट हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंटेंट आप एलिमिनेशन ट्रिक भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो नेवर थिंक इन दिस मैनर कि कोई तिगड़मबाजी है, कोई ट्रिक है जिसके थ्रू आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे। कंटेंट इज द किंग, ऑलवेज। देखो आप लोगों ने अभी तक सारथी आईएएस के मेंस के प्रोग्राम देखे होंगे। Although I am not supposed to tell you this right now, but I can, that more than 650 of our students have again cleared mains this year. So you can expect an even better result this year than there was last year. तो क्यों आ रहा है ये रिजल्ट? ठीक है, क्रेडिबल लोग हैं, दैट्स ओके, दैट डजंट मीन वी आर गुड टीचर्स। ये रिजल्ट आ रहा है बिकॉज हम कंटेंट अच्छा पढ़ाते हैं। आप देखोगे सारथी आईएएस में हमेशा ही इस बारे में डिस्कशन होती है कि यार ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरे से बात करोगे तो हमेशा ही मैं या तो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ या एनवायरमेंट की या साइंस एंड टेक की। वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन कंटेंट बिकॉज यार अल्टीमेटली नॉलेज का ही तो पेपर है, एकेडमिक एक्सरसाइज है। वर्ल्ड का या इंडिया का तो 100% और शायद वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, और आप सोच रहे हो कि वहां कोई गेसिंग करके, एलिमिनेशन करके, तिगड़मबाजी करके आप पेपर सॉल्व कर लोगे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये नहीं होने वाला। इट इज अ ह्यूज चांस गेम। मैं क्यों एम करूं कि मेरे प्रीलिम्स में 85 मार्क्स आए, 88 आए, मैं कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर हूं? आपको हमने हमारे मार्कशीट्स दिखाए थे सारथी आईएएस के सारी फैकल्टी के, आपने देखा होगा वी वर इजीली स्कोरिंग 100+ बिकॉज द फोकस वाज ऑन नॉलेज। मैं नॉलेज इतनी रखूं कि मेरे 100+ नंबर आए और मुझे प्रीलिम्स में कभी डाउट ना। Not saying that elimination is not important. It is not going to be your first resort. It is going to be your last resort. नॉलेज का बेस होगा तो एलिमिनेशन 20 नंबर ऐड करेगी, नॉलेज का बेस नहीं होगा तो एलिमिनेशन 20 नंबर घटा देगी। बिल्कुल राइट। सो नॉलेज फर्स्ट, एलिमिनेशन सेकंड, ये पहला प्रिंसिपल है। और मैं चाहूंगा आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि देखो अभी आपको समझ आ रही होगी ये बात। जब मार्च अप्रैल में क्राइसिस होगा ना, तब होता है कि यार अब जस्ट जल्दी से कुछ कर लूं, देयर इज नो शॉर्टकट, एंड वो भी यहाँ एक प्रिंसिपल है, उस पर भी आएंगे। राइट। अब सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं कि नॉलेज तो यार इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी किस चीज की नॉलेज? स्टैटिक कम्स फर्स्ट। ये बात याद रख लो, हर सब्जेक्ट का स्टैटिक कम्स फर्स्ट अहेड ऑफ एवरीथिंग। आप अगर कोई भी पीवाईक्यू ना करो और कोई भी करंट अफेयर्स ना करो तो शायद फिर भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है स्टैटिक के बेसिस पे, यू हैव अ चांस। अगर आपने स्टैटिक अच्छे से नहीं पढ़ा, ये जो 8 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के, इनका अगर आपने स्टैटिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका प्रीलिम्स नहीं हो सकता। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो फॉर एवरी सब्जेक्ट स्टैटिक कम्स फर्स्ट,
देन PYQs, देन करंट अफेयर्स, एंड इसके बाद सोचना जो सोचना है। फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग मैं स्टूडेंट से ये एक चीज पूछता हूँ Right. यार, ऑनेस्टली एक फीडबैक शेयर करना, एक डिस्कशन करते हैं। लास्ट ईयर जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स दिया था और प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ, अपने Right. आप से एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करके हमें बताना ये बात, क्या लास्ट ईयर आपके साथ ऐसा हुआ कि स्टैटिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप पढ़ के गए थे या Right. जो आपके कोर कंटेंट का पार्ट थे, बट Right. वो आप रियल एग्जामिनेशन में गलत करके आए, है ना? और प्रोबेबली 8 से 10 स्टैटिक के ऐसे क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए होंगे, वो आपने गलत किए होंगे रियल एग्जाम में, तभी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, है ना? समवेयर क्या होता है ना, देखो जब स्टूडेंट का प्रीलिम्स नहीं होता तो बाहर आके क्या बोलता है, यूपीएससी ने करंट अफेयर में रैंडम चीजें पूछ ली, वी पुट ब्लेम ओवर द करंट अफेयर, है ना? Right. एंड वी टेंड टू इग्नोर द स्टैटिक पार्ट जो हमारे सामने होता है, हमने रिवाइज भी किया होता है थोड़ा बहुत, शायद अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ होता, और वहां से हम क्वेश्चन गलत करते हैं एग्जाम में। और जब वहां से हम क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तो उसकी पेनल्टी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा एस्पिरेंट शायद एक रैंडम करंट अफेयर का क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए, लेकिन स्टैटिक का क्वेश्चन वो करेक्ट करके आता है एग्जाम में, ठीक है? Right. तो आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो स्टैटिक के क्वेश्चन सही कर रहा है, रैंडम करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो सबका गलत हो रहा है, या हर कोई छोड़ के आ रहा है ना? Right. अब प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली, क्या So, आपका आई थिंक सर इसको मैं कहता हूँ शुड हैव नोन फिनोमिना, कि आपको देखते ही समझ आ जाता है कि ये मेरे को आना चाहिए था, राइट, लेकिन आप गलत कर देते हो या मुझे नहीं आता। यू सी द डेफिशिएंसी इन योर प्रिपरेशन राइट देयर, राइट, इट्स एविडेंट टू यू, और आपको अंदर से पता होता है हाँ, कि यार मुझे आना चाहिए था, राइट? ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये लक्ष्मीकांत में था, ये स्पेक्ट्रम में था, ये इकोनॉमी में शिवन सर ने पढ़ाया था, आपको पता है, राइट, बट आपने वहां गलत कर दिया है, राइट, राइट? एंड दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो ये फिनोमिना हमें अवॉइड करना है, तो ज्यादा फोकस स्टैटिक पे करेंगे। एंड जैसे सर ने बताया, आप बता दो ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, यू कैन टेल मी इफ दिस हैज हैपेंड टू यू और नॉट। देखिए प्लीज समझ के देखिए कि जो इम्पैक्ट है एक रैंडम करंट अफेयर क्वेश्चन को गलत करने का और एक स्टैटिक के क्वेश्चन को गलत करने का, वो काफी डिफरेंट है ना? जब आप एक स्टैटिक का क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 2.66 मार्क्स से पीछे हो जाते हैं, और उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद आपको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं एक से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे जो आपके मेन कंपटीशन को नहीं आते हैं, ठीक है? तो दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन द एग्जामिनेशन, है ना? राइट। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, स्टैटिक विल रिमेन अ किंग मेकर इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ठीक है? अब एवरी सब्जेक्ट मैटर्स, स्टैटिक हर सब्जेक्ट में होता है। सिलेबस में अगर यूपीएससी ने 8 चीजें लिखी हैं तो 8 की 8 इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये 4 तो मैं अच्छे से करूंगा और ये 4 मैं खराब तरीके से करूंगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे अभी। बट ये बात ध्यान रख लो, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल एंड नो सब्जेक्ट्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इक्वल। सो द पॉइंट इज एवरी सब्जेक्ट मैटर्स। आप, मैंने बहुत बार सर ये देखा है, करंट अफेयर्स के लिए 2 कंपाइलेशन कर लेंगे, यहाँ की पढ़ ली, उस कोचिंग की पढ़ ली, यहाँ से डेली भी पढ़ लेते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री की एक ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ी है, नहीं सर बोरिंग लगती है। उससे जब आने हैं 5 क्वेश्चन, राइट, सबको पता है उससे 5 क्वेश्चन आने हैं हर साल, तो वो नहीं छोड़ के जाना है। तो कोई सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है, चाहे आपको खराब लगे या नहीं। देखो आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, यू विल हैव टू डू थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, right? But that doesn't mean that you will not do them professionally. You will not like every posting, you will not enjoy every job, right? But you will be expected to do all of them with as much integrity and compassion as you will do any other job, right? तो सेम चीज आपको यहाँ रखनी है। इवन ना एक फिनोमिना मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। जितने भी लोग दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एक कॉमन हैबिट होती है हमारी कि जो सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी आता है ना, वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ते रहते हैं, है ना? Right. क्योंकि उसमें हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है, राइट? डॉक्टर्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर मैथ्स पढ़ रहे हैं, राइट, यही होता है सर, ठीक है ना? तो अगर आप उसी चीज को बार बार पढ़ते रहोगे तो वहां पे परफेक्शन नहीं आने वाली। Right. व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डाइवर्सिफाई, है ना? 8 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, सब में डिसेंट टाइम स्पेंड करो, इक्वल टाइम भी नहीं, राइट? समवेयर इकोनॉमी विल रिक्वायर मोर टाइम इफ विल कंपेयर विद एनवायरनमेंट, है ना? बट इंपॉर्टेंस आपको इक्वल देनी है, ठीक है? समझ में आई ये बात? नेक्स्ट, देयर आर नो शॉर्टकट्स। अगर मैं भी आपको आके कह रहा हूं ना कि आई कैन टीच यू एंशिएंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स, कंप्लीट करंट अफेयर्स इन 8 आवर्स, ठीक है? तो उस वीडियो को बस डिसलाइक करना यूट्यूब पे और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। एंड दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट एवरी सच वीडियो। राइट, ऐसे नहीं होता भाई। राइट, आप सोचो यार, लोग 1-1 साल से 5-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, पिछले साल सिलेक्टेड लोग आपके साथ आके प्रीलिम्स देने वाले हैं, और आप सोच रहे हो 8 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं हो सकता। यू टेक इट फ्रॉम मी राइट नाउ। हो सकता है कि आप रिवाइज कर लो, है ना, 12 घंटे में आप एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो जब मैंने पढ़ रखा है, बट अगर आप उसे फर्स्ट टाइम लिख रहे हो कि यार मैं फर्स्ट टाइम ये 10 घंटे की वीडियो देखूंगा और मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता।
राइट यू कैन रिवाइज अ सब्जेक्ट इन 12 आवर्स, दैट टू इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने भी किया था यूट्यूब पे लास्ट ईयर 12-12 घंटे बैठ के, मेरे गले की हालत खराब हो गई थी, राइट एंड तब भी सिर्फ रिविजन था, रिकॉलिंग थी। तो 12 घंटे सिर्फ सब्जेक्ट को रिकॉल करने में लगते हैं, पढ़ नहीं सकते आप सब्जेक्ट। एंड दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर दोज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी सब्जेक्ट आपसे पढ़ा है, राइट वही लोग उस 12 घंटे के सेशन से रिवीजन कर सकते हैं। मैं राइट ना यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, ये जो शॉर्टकट का कल्चर है ना, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ 2015 टू 2020 एंड 2020 टू 2025, ये शॉर्टकट का कल्चर आया यूट्यूब की वजह से, ऑनेस्टली, है ना। राइट सोशल मीडिया के पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हैं। राइट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, सारथी आईएएस का जो मेन प्रीलिम्स रिवीजन का कोर्स है, उसके सारे लाइव लेक्चर इस बार हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कोई लाइव लेक्चर नहीं होगा, बस अप्रैल का करंट अफेयर कराएंगे करेंगे सर, एंड विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, एंड सर्टेन टेस्ट विल गो ऑन। बट अप्रैल और मई में मैं आपको सजेशन दूंगा यूट्यूब का ऐप डिलीट कर देना। करेक्ट, ठीक है ना? एब्सोल्युटली कोई बेनिफिट नहीं है, यूट्यूब का ऐप डिलीट कर देना। आपकी जो स्ट्रैटेजी मार्च एंड तक कंसोलिडेट हो गई है, उसी को रिवाइज करना अप्रैल मई में। यू शुड नॉट फॉलो एनी शॉर्टकट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सक्सेस। ये अप्रैल मई में ही ये प्रॉब्लम आती है, राइट क्योंकि तब ये डिस्कशन शुरू हो जाती है यार कि शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, जल्दी कर लें, वो नहीं करना है। राइट लास्ट, प्रिपरेशन मस्ट बी प्लान्ड एंड नॉट रैंडम। ठीक है, ये चीज प्लीज ध्यान रखना, प्लान्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपके जो गैप्स हैं आपको पता होना चाहिए, इस बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मेरी प्रिपरेशन में गैप्स क्या हैं, एंड देन पुट इन एफर्ट अकॉर्डिंगली। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में यार मुझे एमसीक्यू में प्रॉब्लम होती हो सॉल्व करने में, तो मैं उसके टेस्ट ज़्यादा दूंगा। किसी सब्जेक्ट में मुझे एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं होती बट मुझे रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसकी एक्टिव रिकॉल ज़्यादा करूंगा। और कोई सब्जेक्ट मुझे समझ ही नहीं आता तो मैं उसके लेक्चर ज़्यादा देखूंगा। यू नीड टू फिगर दिस आउट फॉर योर सेल्फ एंड आई विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस। आज भी उस बारे में बात करेंगे, एंड जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन है वो इसी बारे में है, दैट आर प्रिपरेशन मस्ट बी प्लान्ड। रैंडम नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो मैंने कर लिया। आप जितने भी लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, सबकी स्ट्रैटेजी में 10-20% का वेरिएशन होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट इन दैट वे। हो सकता है मुझे साइंस एंड टेक बहुत अच्छा समझ आता हो बट एंशिएंट हिस्ट्री ना आता हो, एंड इट कैन बी डिफरेंट विद समबडी एल्स। तो वो चीज मुझे सॉर्ट करनी है, राइट। सो विद दीज 5 की कंपोनेंट्स, इनको आप ध्यान में रखो, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रोग्राम टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। एक बार पॉज लेते हैं पिछले Right. वाले स्लाइड पे, जी है ना। सर। देखिए ये ना वो प्रिंसिपल हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को अगले 6 महीने तक गाइड करने वाले हैं, है ना। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट दीज थिंग्स ऑन अ A4 पेज, और जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, जो भी टेबल है, लाइब्रेरी है, सामने उस A4 पेज को आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। Right. प्लीज राइट दीज थिंग, है ना। देखो अभी ये बातें आपको लग रही होगी, हाँ सर ये तो ऑब्वियस ही बातें बोल रहे हैं, स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट समवेयर फेब मार्च अप्रैल में जाके ना आप डाइवर्ट कर जाते हो जो कोर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। Right. तो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज प्रिंसिपल, फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ये वो प्रिंसिपल है जो आपको भटकने नहीं देंगे, ठीक है। Right. ध्यान रखना प्लीज। सो लेट्स कीप दिस एज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब जो मैं आपको कह रहा था, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल, मोस्टली लोग ये प्रिपरेशन करके जाते हैं प्रीलिम्स में। आई एम श्योर आप लोग भी इससे रेजोनेट करोगे। इकोनॉमी पढ़ लिया, वो भी आधा अधूरा बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के। पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर भी ठीक से पढ़ते हैं। और ये 5 सब्जेक्ट, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जिसे मैं कहता हूँ मेज, विच मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज स्टक इन द मेज ऑफ प्रीलिम्स, वो नहीं पढ़ते, राइट। क्योंकि आप यहाँ अटक जाते हो। ये सब्जेक्ट्स, जितने क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आते हैं उतने क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आते हैं। अब आप सोच लो कि आज तक अपनी प्रेप में आपने उन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दिया और इनको कितना टाइम दिया, ठीक है। आप खुद ये देख सकते हो दैट आई एम श्योर यू विल रेजोनेट विद दिस फैक्ट दैट दिस टाइम हैज नॉट बीन इक्वल बट द क्वेश्चंस आर इक्वल। यहां पर प्रायोरिटी आपने नहीं दी है, दिस इज व्हाट वी नीड टू सॉर्ट आउट। तो यहां पर इक्वल प्रायोरिटी हमें देनी है। तो प्लीज टेल मी, हमारे डॉक्टर का डायग्नोसिस करेक्ट है क्या? राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन दीज 4 सब्जेक्ट, राइट, 80% ऑफ द टाइम, राइट। दैट इज द इशू, ये हमें सॉल्व करना है, राइट। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट, राइट। अब let us just once run through the features of prelims navigator. I am sure आप में से कई लोगों ने शायद ध्यान से देखा भी होगा once before you have enrolled, but कई लोगों ने शायद उन्हें सारे फीचर्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। तो we'll just run through the features of everything that you are getting in this course and then we'll also explain how this course is going to run, ठीक है। देखो यार, before I explain from this slide,
मैंने आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक कंसेप्चुअल आइडिया दे देता हूँ कि हमने ये डिजाइन किया कैसे था, ठीक है। आपको जब बैकएंड की इंफॉर्मेशन समझ आ जाती है तो फिर it's like MCQs, right? You understand the context, it's easy to understand what is in the front and then do an objective question about it. Right. तो देखो यार, हमारा आइडिया ये था कि पहले तो ना प्लानिंग की प्रॉब्लम है, रैंडम प्लानिंग हो रही है प्रीलिम्स में, लाइक यू आर नॉट प्लानिंग एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले। तो हमने सोचा यार एक ना हम डेली टारगेट्स देंगे और हर सेशन में, हर हफ्ते में हम एक्सप्लेन करेंगे कि यार इन टारगेट्स को ऐसे पढ़ना है। जैसे आज पहला सेशन है, आज मंडे, राइट? तो मंडे को मैं आज आपको जो डेली टारगेट दूंगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए दैट थ्रू दिस वीक, थ्रू ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थ्रू दिस वीक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू रीड। मैंने आपको पहले बता दिया कि यार कल ये पढ़ना, परसों ये पढ़ना, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जनरली ऐसे अलाइन नहीं रहती। हम कभी बहुत ज़्यादा टारगेट रख लेते हैं, कभी कम रख लेते हैं। तो आई विल डू दैट जॉब फॉर यू। अब टारगेट्स तो बन गए, अब अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी? अनफॉर्चुनेटली मैं आपके घर आके तो देख नहीं सकता कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। तो उसका तरीका हमने सोचा कि यार आपके रोज टेस्ट रखते हैं, तो आप मंडे को आज जो पढ़ोगे ना, मैं बताऊंगा टारगेट, उसका कल टेस्ट है, जो कल पढ़ोगे उसका परसों टेस्ट है, जो परसों पढ़ोगे उसका उसके बाद टेस्ट है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, राइट? आप जो पढ़ोगे उसके अगले दिन उसका टेस्ट है। सो डेली टेस्ट हम कर रहे हैं, राइट? ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो अप, राइट, शो अप और टेस्ट दो। तो पहली चीज हमें समझ आई कि डेली टारगेट है और साथ में डेली टेस्ट है। ये जो डेली टेस्ट है, देयर विल बी 25 क्वेश्चंस इन डेली Right. टेस्ट, राइट? 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट है। मंडे को जो पढ़ा, ट्यूसडे को उसका टेस्ट, ट्यूसडे को जो पढ़ा, वेंसडे को उसका टेस्ट। रोज 25 क्वेश्चन एमसीक्यू में करने ही करने हैं। Right. और यही हमारा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है कि अगर मैंने 25 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मतलब मैं पढ़ के तो आया ही था। अब वीक का कैसे चेक होगा? आपने पूरे वीक पढ़ाई कर ली, तो अब ये कैसे चेक होगा? इसके लिए दो चीजें हैं। सैटरडेज को मैं लूंगा आपके साथ एक मेंटरशिप सेशन। इस मेंटरशिप सेशन में क्या होगा? अब अगले वीक का भी तो टारगेट देना है, एक नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है यहां से। सो टारगेट्स फॉर नेक्स्ट वीक, यार अगले वीक क्या करोगे, एंड वॉट एवर यू हैव रेड ये 5 दिन में, 6 दिन में रादर, उस सबका एक्टिव रिकॉल। और आपको इतना बढ़िया टेक बेस्ड एक्टिव रिकॉल करके दिखाऊंगा। पहला सेशन आप अटेंड कर लो। इट इज अ साइंटिफिक AI बेस्ड फास्ट पेस्ड रैपिड रिवीजन सेशन दैट वी आर गोइंग टू डू, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक की जा सकती है और आप अपने फोन को यूज करके अपना एक्टिव रिकॉल बेटर कर सकते हो, राइट? एंड आई विल शो यू द टेक एंड द आइडिया बिहाइंड इट। यू विल बी अमेज्ड। मतलब उससे बेटर टेक्निक नहीं है मेमोरी की पूरी दुनिया में, राइट? दैट ऐप हैज बीन अवॉर्डेड। आई विल शो यू एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू। तो इतनी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी यहाँ पे कि इस पूरे हफ्ते का कुछ नहीं भूलेगा, ठीक है? एंड आपको पता है मैं आई लाइक टू गिव यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो जैसे जब 2-3 हफ्ते हो जाएंगे ना और आपको लगेगा कि सर तो बस पिछले हफ्ते का पूछते हैं, तो रैंडमली आपको एक दिन लगेगा कि मैंने पिछले किसी हफ्ते का, 5th वीक में फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस पूछ लिए। सो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड इट्स माय जॉब टू मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। जो ये काम आप खुद नहीं करते कि बुक बंद करके याद करना, है ना? हमारा क्या होता है, हाईलाइट कर लिया, दोबारा देख लिया। जो आप एफर्ट नहीं करते ना कि बुक बंद करके याद करा, दिमाग पे जोर डाला, एक्टिव किया, क्योंकि वहां तो प्रीलिम्स में ऐसा ही होना है, वो काम मैं आपसे करवाऊंगा। तो एक ये रिवीजन हो गई। अब उसके बाद एक और बात करते हैं। ये जो दिन है, इस दिन क्या होगा? पूरे हफ्ते का टेस्ट, 100 क्वेश्चन टेस्ट। संडे को 100 क्वेश्चन टेस्ट हो गया। तो अब मैंने एक हफ्ते में 6 दिन 25 एमसीक्यू किए, मतलब मैंने 150 एमसीक्यूज कर लिए, और 100 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने संडे को कर लिया, और मैंने एक एक्टिव रिकॉल सेशन भी अटेंड कर लिया। उसके अलावा मैंने इसी हफ्ते एक दिन लाइव एमसीक्यू सेशन कर लिया वरुण सर के साथ, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि यार जब नया क्वेश्चन आता है, एक स्किल होता है एमसीक्यू सॉल्व करना, राइट? जैसे आई हैव क्लियर्ड नीट, सर हैज क्लियर्ड आईआईटी जेईई। तो आप ये देखोगे जो लोग नीट या आईआईटी जेईई करके आते हैं, यू विल सी इट्स रिलेटिवली इजियर फॉर देम टू मेक इट थ्रू एमसीक्यूज। बट उनमें भी क्योंकि सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, एक दिक्कत आती है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, उसका एक स्किल है, वो स्किल आपने सीखा। Even yesterday, I was taking one DAF of one student who has cleared the mains examination in her 4th attempt. है ना? She was telling in the prelims, पहली बार mains लिखा 4th attempt में, पहली बार में clear किया। तो she was telling me this thing. Last year she was in LMS session, live MCQ solving session.
एंड वाइल शी वाज सॉल्विंग लाइव एमसीक्यू विद मी, तो जो भी एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड है जो मेरे पास है, वो जस्ट बिकॉज हम साथ में बैठ के लाइव सॉल्व कर रहे हैं, तो शी हैज आल्सो अंडरस्टूड एंड ग्रैप्स दैट पर्टिकुलर स्किल, और वो अप्लाई के एग्जाम में, एंड शी कुड क्लियर द फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन हर फोर्थ अटेम्प्ट, राइट? तो Right. ये 25 एमसीक्यू हम 25 to 50 अलग अलग सेशन में अलग अलग रखेंगे, ठीक है? यू विल सॉल्व विद मी इन द लाइव सेशन, अब एक चीज यहाँ पर मिसिंग है और वो है पीवाईक्यूज। राइट? तो एक आपका हफ्ते में पीवाईक्यू सेशन भी हो गया, राइट, एंड विल गिव यू द डिटेल्स, बट आप मान लो कि जैसे थर्सडे को पीवाईक्यू सेशन हो गया, ट्यूसडे को एलएमएस हो गया। अब आप देखो, इन 1 वीक यू आर सॉल्विंग पीवाईक्यूज, you are solving 250 new MCQs by yourself, राइट, 25 to 50 live MCQs with वरुण सर, टारगेट्स मिले हुए हैं, और आप मेरे साथ एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हो। राइट, इसके बाद भी अगर भूल गया तो फिर तो याद नहीं हो सकता ना। राइट, इसके बाद भी अगर हम भूल गए तो फिर तो क्या ही हो सकता है, मतलब इससे ज्यादा तो आई थिंक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको करवा दे। दिस इज द वीकली शेड्यूल वी आर डूइंग विद यू, राइट? एंड इसके साथ करंट अफेयर्स हमने सोचा यार एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट, कि करंट अफेयर्स एक मेजर इशू है। तो करंट अफेयर्स हम आपको कह रहे हैं सब हम पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे जनवरी से, विल एक्सप्लेन हाउ दैट विल वर्क टू। तो करंट अफेयर्स भी डन हो गया, ठीक है। और एक सीसैट का इशू है, ये भी डन हो गया। CSAT we will also do. CSAT will also do here, live sessions will do of CSAT, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो अब ये हमारे बेस प्रीलिम्स नेविगेटर के फीचर्स हैं विच एवरीबडी इज गेटिंग, राइट? तो आपकी मेमोरी, आपका रिकॉलिंग, आपके एमसीक्यूज, आपका करंट अफेयर्स, आपका सीसैट, आपकी शेड्यूलिंग और आपकी हैंड होल्डिंग, Right. ये सब कर रहे हैं हम, राइट? एंड दिस इज द आइडिया बिहाइंड डिजाइनिंग इट, राइट? आई होप अब आप लोगों को एक क्लियर हो रहा हो कि किस ऑर्डर में ये सोचा गया है। अब हमने सोचा कि यार कई लोगों को कंटेंट की जरूरत है, राइट? एंड फॉर दैट, सो जस्ट वन सेकंड, एंड फॉर दैट वी एडेड द कंटेंट टू। हमने कंटेंट भी ऐड कर दिया इन प्लस, जिसमें हमने डिसाइड किया यार मेज आप लोग नहीं पढ़ते, तो मेज का हम सारा कंटेंट दे रहे हैं, राइट? पहले हमने ये सोचा था कि मेज का कंटेंट दे देते हैं बिकॉज लोग फाउंडेशन में तो इकोनॉमी पॉलिटी तो पढ़ के आते ही हैं, एंड देन द डिमांड केम फ्रॉम योर साइड कि नहीं यार हमने फाउंडेशन में भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। So we've added topic wise, and I'll show you those also. Topic wise lectures of economy, polity, geography, and modern history also. So basically, all the content, literally all the content that you can imagine is also here, right? तो एक बार बस मुझे बताओ, समझ आ रहा है प्रोग्राम? थोड़ा सही लग रहा है? Do you think it is going to help? Because Right. now I'm sure you are. The idea is evident to you कि हमने क्या सोचा था. What did we think? एंड एक और चीज मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे, PYQ सेशन विल बी टेकन बाय सजल सर, करंट अफेयर मुदित सर लेने वाले हैं, एंड CSAT विल बी टेकन बाय राम मोहन पांडे सर। ऑल्सो इन करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट विल बी टेकन बाय शिविन सर, एंड इंटरनेशनल रिलेशन फॉर करंट अफेयर आई विल बी टेकिंग। ओके, तो कुछ बचता नहीं है यहाँ पे आपके लिए, राइट? So for the entire journey we are ensuring कि कुछ बचे ही नहीं, ना MCQs बचे, ना आपकी रिकॉलिंग बचे, ना आपकी प्लानिंग में कोई इशू हो, ना आपके कंटेंट में कुछ इशू हो। दैट इज व्हाट वी हैव सॉर्टेड आउट, दिस इज द आइडिया। अब ये आइडिया आपको क्लियर है तो आपको सारे फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव डिसाइडेड टू मेक एवरीथिंग हियर। तो अब आप यहाँ पढ़ो, देयर आर मेंटरशिप सेशंस। इन दीज मेंटरशिप सेशंस वी आर गोइंग टू लुक एट, जैसे आज भी पहला मेंटरशिप सेशन अभी लूंगा मैं आधे घंटे का, वेयर आई विल टेल यू के पहले टारगेट्स क्या है। Then we'll have PYQs, we have LMS practice, we have daily tests and test series, current affairs, CSAT. हमने content के lectures, recorded lectures of polity, economy, geography and modern history भी add कर दिए, Right. and live lectures of maze भी add कर दिए, mapping, art and culture, IR, science and tech and environment. So this is live and this is recorded. This is available in the plus version, and if you want one-on-one mentorship, that's available in the prime version. तो Right. ये सारे फीचर्स हैं, ऐसे पढ़ के आप समझ सकते हो फीचर्स को, बट आई एम श्योर दैट आइडिया इज क्लियर टू यू, एंड उस आइडिया के हिसाब से ही खुद को प्रिपेयर करना है, Right. ठीक है? कि इतने एमसीक्यूज कर लेने हैं, इतनी रिकॉलिंग कर लेनी है कि इशू ना आए, राइट? नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, क्या कुछ बचा क्या भाई? क्या आपको लग रहा है ये तो कॉम्प्रिहेंसिव है विद ऑल द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव इन द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, चाहे कंटेंट हो या है मेंटरशिप हो, एमसीक्यू हो, टेस्ट सीरीज हो,
राइट, करंट अफेयर हो, सीसेट हो, एवरीथिंग इज कवर्ड एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय सारथी आईएएस कोर टीम, है ना। तो जितने भी क्रेडिबल फेसेस आप यूट्यूब पे देखते हैं, है ना, Right. वही आपको कोर्सेज में पढ़ाएंगे, राइट। कुछ बचा नहीं यहाँ पे, सीसेट के भी टेस्ट हम लेंगे, राइट। Literally nothing is left. सीसेट विल बी डन लाइव, यस। CSAT is part of base. यार ये हम अभी बता देते हैं आपको, आई थिंक ना? ये जो बेस प्लस की कंफ्यूजन अब है ये अभी बता देते हैं, बट नथिंग लेफ्ट. यस, फुल ठीक है. लेंथ टेस्ट विल आल्सो बी देयर, कुछ नहीं बचेगा। और बताओ, मेस के लेक्चर लाइव होने वाले हैं, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। These are live. इनके लेक्चर लाइव होने वाले हैं, डन। अब देखो, प्रोग्राम एक्साइटिंग है, सारी चीजें आपको लग रहा है कि सर ये तो मजा आ गया, आई फील मच बेटर। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, खाली हमारी एफर्ट से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्रैक नहीं करोगे, है ना। देखो, हम तो बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि जब सिलेक्शन के बाद हम टॉपर से मिलते हैं, अभी Right. पिछले 3-4 दिनों में हम डैफ सेशन ले रहे हैं, है ना। Right. और जब हम डैफ सेशन ले रहे हैं ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हम मेहनत करते हैं कंटेंट के ऊपर, वो किस तरीके का इम्पैक्ट स्टूडेंट की स्टडीज पे डाल रहा है। तो Right. वो इम्पैक्ट तभी डालेगा जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। Right. तो आई नीड कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड कि भाई इसके अलावा जो आपको प्लानर यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, उसके अलावा आप कुछ और नहीं करोगे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। करना भी है अगर, पहले इसे कंप्लीट करो, इसे रिवाइज करो, उसके बाद अगर आपका कोई बैंडविड्थ बचता है तब आप जाके कुछ और करेंगे, ठीक है। एंड आई नीड कमिटमेंट फ्रॉम यू दैट यू विल पुट फुल एफर्ट इन द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। राइट, क्या आप ये कर लेना यार, मतलब इसको फॉलो कर लेना पहले। लास्ट ईयर भी जो हमने प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम किया था, ठीक है, पेपर टफ था, जो भी हुआ लास्ट ईयर, देयर वर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, 64 क्वेश्चंस आए थे राइट, आउट ऑफ 100। 64 में ना 128 नंबर बनते हैं, राइट। ठीक है। तो लास्ट ईयर भी मैंने यही कहा था इस सेशन में नवंबर में, और अभी भी यही कह रहा हूँ, बस ये कर लेना। कैन वी हैव दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू? प्लीज टेल अस दिस थिंग। देखो, हर बार ये टेंडेंसी होती है, अच्छा ये तो हो गया सर और क्या, नहीं, ठीक है, ये कर लो पहले। ये भी बहुत ज्यादा है, मैं आपको सही बता रहा हूं, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम यू, ठीक है, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम यू। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट कैन आई हैव दिस कमिटमेंट कि यार ये तो करेंगे अच्छे से। वी हिट 64 आउट ऑफ 100 लास्ट ईयर, वी आर गोइंग टू हिट मोर दिस ईयर, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, हम इससे ज्यादा क्वेश्चन हिट करेंगे इस बार, ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलो डन है। कमिटमेंट देखो, हम अपनी एफर्ट डालेंगे, आप अपनी एफर्ट डालो, और फिर हम सब अपनी एफर्ट से यूपीएससी की जो एफर्ट होती है पेपर बनाने की, उस एफर्ट को बीट करेंगे, ठीक है। राइट, डन है, राइट। चलिए। अब जो आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी अबाउट यू नो who is which batch has what features, तो जस्ट मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ दैट आप ये देख लो, जो यहाँ पर बातें लिखी है, मेंटरशिप, पीवाईक्यूज, एलएमएस, डेली टेस्ट, करंट अफेयर्स, सीसैट, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन बेस। देखिए, जो 3 वर्जन हमने डिफाइन किए हैं, इसके पीछे मेंटालिटी क्या आती है कि हर स्टूडेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, Right. राइट। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू शुड बी हैविंग दिस फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू चूज कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, है ना। राइट, देयर आर वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कहते हैं सर कंटेंट मेरे पास बहुत है, मेरे को 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए, मेरे पे अपना फाउंडेशन का कंटेंट कंसोलिडेटेड है। राइट, अगर आपके पास कंटेंट कंसोलिडेटेड है, ऑल यू नीड इज टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सीसेट, मेंटरशिप एटसेट्रा, तो आपके लिए बेस वर्जन है। तो आप यहाँ बेस पे- वर्जन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि कंटेंट आपके पास है, राइट, मैंने पढ़ रखा है कंटेंट, बट हाँ यार मुझे मेंटरशिप चाहिए, मैं पीवाईक्यूज करना चाहता हूँ, मैं लाइव एमसीक्यू सॉल्व करना चाहता हूँ, मुझे डेली टेस्ट करने हैं। दिस इज फॉर एनीबडी। आप इसका नाम या उस पर मत जाइए, ये बनाया उन लोगों के लिए गया है जिनको कंटेंट आता है, या उन्होंने कंटेंट पढ़ रखा है कि यार ठीक है मेरे पास अपने स्टैटिक के नोट्स तैयार है, अब मुझे बस एक हैंड होल्डिंग दे दो ताकि आई एम एबल टू मेक इट प्रॉपरली, Right. एंड बेस इज फॉर दैट। अब प्लस में क्या है, सेम चीज है, बट वी डिसाइडेड कि यार कई लोग होंगे जिनको कंटेंट चाहिए होगा, जिन्होंने कंटेंट अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो ऑल ऑफ दैट इज देयर इन बेस प्लस कंटेंट। और कंटेंट क्या, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लाइव लेक्चर्स, राइट, एंड जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, उनकी रिकॉर्डिंग्स हमने दे दी हैं आपको, और इनको यूज कैसे करना है उनकी भी आज ही बात करेंगे, Right. राइट। तो यहाँ पर हमने कंटेंट दे दिया। नाउ समबडी सेज सर मुझे कंटेंट भी चाहिए एंड आई नीड हैंड होल्डिंग, बट आई नीड समबडी टू टॉक टू, आई टेंड टू गो अस्ट्रे, मेरे बैकलॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, मैं चाहता हूं मैं वन ऑन वन किसी से पर्सनली अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। Right. उसके लिए वी हैव प्राइम वर्जन, जिसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है और साथ में वन ऑन वन मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है।
सो द आइडिया हियर इज नॉट कि कोई फीचर लिस्ट बनाई है. द आइडिया हियर इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्जन्स एंड यू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. आपके पास कंटेंट है, आप बेस पिक करो. आपको कंटेंट चाहिए, आप प्लस पिक करो. आपको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए, आप प्राइम पिक करो. राइट, एंड दैट इज हाउ यू हैव दिस आइडिया. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. डन, समझ में आया. तो किसी फोमो में आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कीजिए कि क्या बेस्ट है आपके लिए. ठीक है, ऑलरेडी कर लिया होगा चूज, बट फोमो में मत आना. ठीक है, राइट, चलो यहां तक सब कुछ समझ में आया. आगे बढ़े अब. समझ आ रहा है, Please. आइडिया इज क्लियर. प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस फर्दर. उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेते हैं हम. ठीक है, देखिए वन ऑन वन मेंटरशिप में यू विल बी अलॉटेड अ मेंटर एंड दिस होल मेंटरशिप वर्टिकल एट सारथी आईएएस इज हैंडल्ड बाय सजल सर. तो जो वन ऑन वन मेंटरशिप में मेंटर आपका होगा. अगर कोई बैकलॉग आ जाता है, आपके कोई पर्सनल डाउट है, कोई एकेडमिक क्लैरिटी चाहिए, जूम सेशन होंगे आपके मेंटर्स के साथ, आप कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी मंथ में. ठीक है, तो एक डेडिकेटेड मेंटर जिसने एटलीस्ट यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू दिया है, दैट इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग मेंटरशिप रोल इन सारथी आईएएस. ठीक है, तो मेंटर ने एटलीस्ट इंटरव्यू दिया होगा, वो मेंटर आपको अलॉट किया जाएगा जो इस पूरी प्रीलिम्स की जर्नी में आपके थोड़ा साथ सा है. यार, आपने मुझे स्टार्टिंग में कमिट किया था कि 1 घंटा सुनोगे. अब टेस्ट का टाइम कब होगा, क्लास का टाइम कब होगा, आपने कमिट किया था अब 1 घंटा सुनोगे. चलो तो वो कमिटमेंट याद रखो. हुआ नहीं है अभी 1 घंटा. ठीक है, अभी 1 घंटा हुआ नहीं है ना, नहीं हुआ ना, तो 1 घंटा वेट करेंगे. एंड एक और चीज और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, जो शायद इस पीपीटी में भी नहीं है. देखिए देर आर 3 बैचेस जो हम प्लान कर रहे हैं और ऑन दिस लाइन ओनली. दिस इज द नवंबर बैच. द नेक्स्ट बैच विल कम अराउंड एंड ऑफ दिसंबर, दैट विल बी द दिसंबर बैच एंड द थर्ड बैच विल कम इन जनवरी. राइट, राइट, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो. अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर रखा है, यू हैव एक्सेस टू दोस अदर 2 बैचेस एज वेल. ठीक है, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. बस जो स्केड्यूल है, मैं बैच नहीं बोलूंगा इनको, 3 स्केड्यूल बोलूंगा, 3 डिफरेंट प्लानर बोलूंगा. आप कोई भी प्लानर फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली 1 नवंबर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. राइट, हम 15 दिसंबर से भी स्टार्ट करेंगे, 15 जनवरी से भी स्टार्ट करेंगे. आपको जिसका मन हो आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो. कोई भी बैच ज्वाइन करता है, कोई दिसंबर में ज्वाइन करता है तो भी उनको तीनों का एक्सेस है, कोई जनवरी में ज्वाइन करता है तो भी उनको तीनों का एक्सेस है, कोई नवंबर में ज्वाइन करता है जैसे आपने किया है तो भी उनको तीनों का एक्सेस है. तो एब्सोल्युटली हमने किसी भी तरह का कोई फोमो या कोई वो क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है. वी हैव गिवन यू एक्सेस टू एवरीथिंग. वी हैव गिवन यू एन ओपन चॉइस कि आप अपने लिए डिसाइड करो एंड वी हैव पुट इट एज पर योर शेड्यूल. जो आपका शेड्यूल का मन हो आप उस शेड्यूल को फॉलो करो. अब यार एक चीज ध्यान रखेंगे, है ना, आपने शुरू में कहा था आप सुनोगे 1 घंटा. प्लीज लेट मी कंप्लीट. आई एम श्योर आपके डाउट्स नहीं बचेंगे. अभी हमने बहुत और चीजें करनी है. राइट, तो आराम से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं. अब ब्रॉडली इन सेशंस में होने क्या वाला है ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं कि जैसे जो मेरा मेंटरशिप सेशन है उसमें क्या होगा कि यार हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है. जैसे आज हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि यार ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं. राइट, इस तरह से रिवाइज करना है. इस दिन डेली टेस्ट होने. आज पहला मेंटरशिप सेशन आप इसको मान सकते हो. राइट, इसके बाद जो सेशन होंगे वो काफी डिटेल्ड होंगे. जैसे इकोनॉमी का सेशन होगा तो वो बहुत डिटेल में इकोनॉमी पे जाएगा. राइट, एंड देन यू गेट डेली टारगेट्स फॉर द अपकमिंग वीक. जैसे आज मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा फॉर द नेक्स्ट वीक जो आपने पढ़ना है. एंड नेक्स्ट सेशन से विल आल्सो बी डूइंग एक्टिव रिकॉल, क्योंकि जो आप पढ़ चुके होगे उसका रिकॉल होगा. राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन मेंटरशिप. अब LMS will be done by Varun sir and this will start from next week because this week you are just starting your reading. अभी तो इस वीक आप सिर्फ पढ़ाई करोगे. नेक्स्ट वीक से आपके LMS सेशन स्टार्ट होंगे. यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया 25 से 50 नए क्वेश्चन एंड लर्निंग हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, डेवलपिंग दैट एप्टीट्यूड इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. अब PYQ कवरेज, इस बारे में भी हमने बात कर ली. ये भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. ये कब होता है? ये थर्सडे को होता है. आपने इस वीक जो जो पढ़ा उसके PYQs हम नेक्स्ट वीक करेंगे ताकि रेगुलर रिवीजन रहे. एंड दिस विल हैपन एवरी वीक ऑन थर्सडे फ्रॉम नेक्स्ट वीक. तो PYQ कवरेज की भी बात हो गई. हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो अभी आसान है. करंट अफेयर्स आई एंड मुदत सर विल बी टीचिंग, वरुण सर विल बी टीचिंग IR इन दैट. ये हम कब स्टार्ट करेंगे? ये हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे. राइट, क्यों जनवरी में स्टार्ट करेंगे? हमने अपनी रिसर्च के थ्रू देखा है दैट जो जून टू दिसंबर का टाइम है उसके करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में. कि अगर करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आने हैं तो 15 क्वेश्चन जून टू दिसंबर से आ रहे हैं, बाकी के मंथ से कम आते हैं. राइट, सो इन जनवरी वी विल स्टार्ट ताकि जून टू दिसंबर को कंसोलिडेटेड तरीके से
हम पढ़ सके। इसकी क्लास होगी मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। राइट, ठीक है, विल टॉक, ये क्लासेस सारी लाइव होंगी। जस्ट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि करंट अफेयर हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। और क्लासेस लाइव होंगी करंट Right. अफेयर्स की, राइट। मुदित सर एंड आई एंड वरुण सर ऑल थ्री विल टेक अपने अपने डोमेन का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, कुछ और नहीं करना है। टेस्ट की बात करते हैं, ये तो आपके कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो टेस्ट भी ऑब्वियस हो गया। ठीक है, सी सैट की बात करते हैं। सी सैट इन दिस बैच वी विल बी डूइंग इन डिसम्बर। इन दिस बैच विल बी डूइंग इन डिसम्बर। सी सैट भी लाइव होगा, सी सैट के टेस्ट भी हम लेंगे। और कौन लेगा? राम मोहन पांडे सर विल बी टेकिंग सी सैट, ही इज alumnus of IIT, so you are assured that you are being taught by a credible person there also. राइट, देखिए ठीक है? दिसंबर में सीसेट लेने का क्या लॉजिक है, देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग इन सीसेट, और जब आप Right. सीसेट मार्च अप्रैल में जाके करते हैं तो वहां पे ना खाली प्रैक्टिस हो पाती है, प्रेशर भी foundation रहता है building सर, नहीं एक होगा, एक pressure प्रेशर भी रहता है, राइट। है ना। तो अभी एक अच्छा टाइम है नवंबर दिसंबर का आप सभी के पास, जहाँ पे आप बेसिक सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमी एंड पॉलिटी जैसे यहाँ पे हमने प्लान किया है, सीसैट करें और फिर करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट करें, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो सारी चीजों का एक साथ ना है ना, दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग द सीसैट इन द दिसंबर में, थोड़ा फाउंडेशन आप बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो सी सैट भी सॉर्ट हो गया। अब मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी हम जनवरी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी पूरा शेड्यूल मैं आपको आज ही दिखाऊंगा। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी लाइव होंगे, क्लासेस यहाँ पर लाइव होंगी, राइट। मैपिंग विल बी टॉट बाय पल्लवी मैम, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री विल बी टॉट बाय जसलीन मैम, IR विल बी टॉट बाय वरुण सर एंड साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट आई विल बी टीचिंग, राइट। तो ये 5 सब्जेक्ट भी हो गए। अब आपको ये कंफ्यूजन भी हो सकती है यार कि साइंस एंड टेक में तो करंट अफेयर्स भी होते हैं, तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट सेशंस हैं, करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, करंट अफेयर्स में वो चीज कवर हो जाएगी। मैं बस आपको ये एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ कि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना जरूरी है यार कि ये फर्स्ट सेशन है, प्रीलिम्स एक कम्प्लेक्स पेपर है, तो उसका प्रोग्राम भी कम्प्लेक्स ही बनेगा, मेहनत Right. लगती है सारे उसके फीचर्स सब ध्यान में रखने में कि यार एक एक चीज की शेड्यूलिंग ठीक रहे, टाइम से चले। आप सोचो हमें कितने एमसीक्यूज बनाने हैं, Right. राइट। इफ वी हैव टू इंश्योर कि आप हर हफ्ते 250 एमसीक्यूज करो, तो हमें कितने एमसीक्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे, एक्टिव रिकॉल के लिए भी एमसीक्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। सो इट्स अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। Right. अभी आज के सेशन में हम बस आपको ये समझा रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं Right. टू इंश्योर कि आप, हम और आप दोनों सेम वेवलेंथ पे हो, And nothing Right. will be left. And also please remember this thing, एक सिंपल प्रोग्राम भी बन सकता था। राइट। सिंपल प्रोग्राम में क्या होता है, डेली एक क्लास होती है, आप आते क्लास अटेंड करते, एंड दैट विल बी जस्ट अ फास्ट ट्रैक फाउंडेशन कोर्स, है ना। लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व एक और स्कैम भी बन सकता था सर कि हम आपको बस टेस्ट दे देते, राइट, कर लो टेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू बनाए दे दिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये भी कर सकते थे। तो ये जो मेटिकुलस प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि प्रॉब्लम सेंट्रिक है ना, आप जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली फेस करते हो उसके सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ओवर एम्फेसाइज इस चीज पे मत करना कि मेरे को तो याद नहीं रह पा रहा जनवरी में क्या है, फरवरी में क्या है, ठीक है। आपको हम वीकली प्लानर देते जाएंगे, आप बस उसको फॉलो करते आप अगले वीक की टेंशन लो, राइट। उसके बाद अब हम पे छोड़ दो, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले whatever I am communicating to you in this 1 hour has taken 5 weeks of planning to ensure that everything we get right। ठीक है, पूरी टीम ने बैठ के प्लान किया है, तो कुछ नहीं छूटा होगा यार। सारथी आईएएस के कंबाइंड एक्सपीरियंस अब 6 सिलेक्शंस और 22 इंटरव्यूज का है, ठीक है। अगर ये लोग बैठ के प्लान कर रहे हैं तो आप मान सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमने छोड़ा होगा, राइट। हमने और हमारी टीम ने मतलब अराउंड 30 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं पूरी टीम ने मिला के, राइट। सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट द एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू मेकिंग दिस, तो आप टेंशन मत लीजिए, राइट। अब ये है शेड्यूल। अब इस शेड्यूल को यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ बिट डिटेल। वैसे जो मैंने यूट्यूब पे अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है 6 मंथ प्लानर की, इसी प्लानर को यूज किया है। आप इस वीडियो को और डिटेल में यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो आपको पूरा प्लान समझ आ जाएगा। और यू कैन जस्ट लुक एट दिस, एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं शेड्यूल का। देखो अब ये शेड्यूल ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नवंबर 17 से, आज से। बट जब मैं ये शेड्यूल बना रहा था ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, क्योंकि शेड्यूलिंग ना हमेशा उल्टी होती है। मेरे को लास्ट डे पे पता है मुझे क्या करना है, स्टार्ट डेट कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, इस बात को समझना। तो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया गया और आपको शेड्यूल देख के बात समझ आएगी। मैंने कहा यार कि अप्रैल और मई में मेरे को सिर्फ रिवीजन करनी है,
ऐसा नहीं है कि इस बैच में अप्रैल मई में हम आपको कुछ क्लासेस नहीं रख रहे हैं। अभी शेड्यूल देखते ही आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अप्रैल मई में सिर्फ रिविजन होगी, राइट। अप्रैल मई इज द मंथ वेयर वी विल जस्ट डू आवर रिविजन। तो अब देखो, देयर इज प्रीलिम्स ऑन 24 मई, ठीक है, इस दिन पे प्रीलिम्स है, राइट। अगर इस दिन पे प्रीलिम्स है तो उसके एक हफ्ते पहले मैं क्या करूंगा, राइट। आई विल वांट 1 डे टू रिवाइज एवरीथिंग। इसके पिछले एक वीक में आई विल वांट टू रिवाइज स्टफ, राइट। तो पहले 1 डे रिविजन है कि 24 को प्रीलिम्स है, तो पिछले 8 दिन मैं एक दिन पर सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। उसमें भी एंशिएंट मिडिवल लास्ट में है क्योंकि सबसे ज्यादा भूलता है, और पॉलिटी शुरू में है क्योंकि कंसेप्चुअल है, ठीक है। और उल्टा देखते हैं, अब ये 8 दिन हो गए, रिवर्स प्लानिंग समझा रहा हूं बस आपको। ये 8 दिन हो गए, अब 14th को मैंने बैकलॉग के लिए रखा, 23 मई को मैंने रिजर्व डे रखा। तो अब मेरा 14 टू 23 का शेड्यूल बन गया उल्टा जाते हुए कि यार ये लास्ट 10 दिन में मैं एक एक दिन पर सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा। अब इस स्टेट में आने के लिए कि मैं एक पूरा सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज कर लूं, इसके लिए तो मेरे को बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे पहले 2 रिविजन और होनी चाहिए। तो इससे पहले आप देखोगे कि हर सब्जेक्ट की 2 डे की रिविजन है, कि मैं हर सब्जेक्ट 2 दिन में रिवाइज करूंगा। तो यहां से देखो अब इस शेड्यूल को, यू लुक एट इट फ्रॉम 28 अप्रैल, 2 दिन इकोनॉमी के लिए, 2 दिन पॉलिटी के लिए, 2 दिन ज्योग्राफी मैपिंग के लिए, 2 दिन साइंस एंड टेक के लिए, 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, 2 दिन एनवायरमेंट के लिए, 2 दिन आईआर के लिए, 2 दिन एमैक के लिए। अब अगर मैं 2 दिन में सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा हूं तो इससे पहले मैंने और रिविजन करी भी होनी चाहिए। तो आप 1 अप्रैल से देखो 3 डेज पर सब्जेक्ट। अप्रैल और मई में आपको मैं ये सारे सब्जेक्ट्स 3 बार रिवाइज कराने वाला हूं। तो 3 डेज फॉर इकोनॉमी, 3 डेज फॉर पॉलिटी, तो पहले 3 डे रिविजन है। समझ आ रही है ये बात। अप्रैल में स्टार्ट किया 3 डे रिविजन, 3 दिन रखे इकोनॉमी के लिए, 3 दिन रखे पॉलिटी के लिए, 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन साइंस एंड टेक, ऐसे एक राउंड कंप्लीट किया। फिर सब कुछ 2-2 दिन में किया, इकोनॉमी इन 2 डेज, पॉलिटी इन 2 डेज एक्सेट्रा, फिर सब कुछ एक एक दिन में किया। 3 बार रिवाइज कर रहे हैं हम अप्रैल मई में। अब शेड्यूल स्टार्टिंग से देखो, मुझे एंड गोल पता है। एंड गोल क्या है यार, कि मुझे 1 अप्रैल को ये सब्जेक्ट 3 दिन में रिवाइज करना है। अब मैं वैसे पढ़ूंगा कि मेरे को अप्रैल में 3 दिन में रिवीजन कर पाऊं मैं। मेरे को टारगेट तो क्लियर होना चाहिए ना। तो अगले 3 हफ्ते में क्या टारगेट है, अगले 3 हफ्ते में टारगेट है कि इकोनॉमी इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि अप्रैल में 3 दिन में रिवाइज हो जाए। उन 3 दिन में इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि 2 दिन में रिवाइज हो जाए। उन 2 दिन में इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि 1 दिन में रिवाइज हो जाए। और अगर 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा तो प्रीलिम्स में गलती नहीं होगी। लॉजिक समझ आ रहा है? इज द लॉजिक क्लियर? इज द लॉजिक क्लियर टू यू? है ना, समझो बात को कि हो क्या रहा है। ठीक है, द लॉजिक इज सिंपल, 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन, 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन, ये लॉजिक है। ठीक है, अब प्लानिंग कैसी है, पहले इकोनॉमी, इकोनॉमी से आज स्टार्ट कर रहे हैं, 3 हफ्ते इकोनॉमी है, इसके बाद पॉलिटी सीसैट है, इसके बाद ज्योग्राफी है, इसके बाद साइंस एंड टेक है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ यार, हमने सोच रखा है, द आइडिया इज हमने सोच रखा है। आई विल गिव यू दिस प्लानर, इट्स अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट, यूट्यूब पे जाओगे तो डिटेल में प्लानर भी देख सकते हो। द आइडिया हियर इज सिंपल, आपको सिर्फ अगला हफ्ता देखना है। हमने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा है, कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी है। हमने ये डिसाइड किया है कि मार्च तक हम सब कुछ खत्म कर देंगे, पढ़ा देंगे। इसमें आप देखोगे रिवीजन के लिए, बैकलॉग क्लियर करने के लिए भी डेज रखे हुए हैं। हमें पता है आपको दिक्कत आती है इन चीजों में कि यार बहुत ज्यादा हो गया, बैकलॉग इकट्ठा हो गया, तो रखा हुआ है कि ये 5 दिन है बैकलॉग क्लियर करने के लिए, ये 7 डेज रिजर्व है कि जो जो गलतियां हो गई हैं उनको सॉर्ट कर लो, राइट। सो प्लीज इस पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं। आई एम श्योर 1-2 सेशन के बाद वैसे ही आप देख लोगे। शो अस अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट वीक। और अभी टारगेट है अगले हफ्ते में 1st वीक का इकोनॉमी करना है, एंड दैट इज इट, इतना ही है, राइट। तो सर मैं यही बात कम्युनिकेट कर रहा था कि बस अगले हफ्ते पे फोकस कर लें, बाकी हम देख लेंगे। राइट। देखिए इतना डिटेल में ये इसलिए समझाया गया है क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट आगे की बहुत टेंशन लेता है, राइट। हमने पिछले 2-3 सालों में यही सीखा है। तो हम बस आपको इस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि हमने आपके लिए आगे का प्लान करके रखा है, ठीक है। आप बस इमीडिएट वीक की टेंशन लीजिए, आपके जो इमीडिएट वीक का गोल है वो समझिए और उसके एग्जीक्यूशन पे फोकस कीजिए, है ना।
देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थ्योरी होती है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन विंग अलग होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो उससे एग्जीक्यूशन बहुत बेटर हो पाता है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। हमने प्लानिंग की है आपके लिए, हम आपके लिए कंटेंट डिलीवरी करेंगे, आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक मेरे को क्या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जो मेन चीज होती है ना यार, एक की टेंशन रहती है प्रीलिम्स में कि यार हाँ ये रह गया तो उसका क्या। हाँ व्हाट अबाउटिज्म बहुत होता है हमारे दिमाग में, है ना, कि यार इफ व्हाट अबाउट इकोनॉमी, व्हाट अबाउट दोस करंट अफेयर्स, छोड़ दो, हम देख लेंगे। जो आपको बोला जा रहा है आप अगले हफ्ते कर लो। छूटेगा आपका कुछ नहीं है, मेरी गारंटी है। राइट छूटेगा पता है कब? जब आप टेंशन लोगे, फिर आप ये ढंग से नहीं करोगे, फिर आपका छूटेगा। राइट अगर आप आंख बंद करके ये कर लो ना यार कि मैं ये सारा शेड्यूल एज इट इज जैसे सर बोल रहे हैं मैं वो फॉलो कर लेता हूं, कुछ नहीं छूटेगा। मेहनत लगेगी, बहुत आसान नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा इट्स इजी, इट्स एब्सोल्युटली नॉट इजी। राइट, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कोर्स लेना नहीं होता, कोर्स को फॉलो करना होता है। सो इट्स नॉट इजी एट ऑल। राइट, बट अगर आप ये कर लो आपकी टेंशन नहीं रहेगी, यू विल नॉट बी लेफ्ट विद एनीथिंग। ऐसा नहीं होगा कि यार ये तो इग्नोर ही हो गया, ये तो चीज मैं भूल ही गया, इकोनॉमिक सर्वे बजट तो मैं भूल ही गया कि पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। डन। ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, समवेयर किस वीक कब क्लास होगा क्या होगा, ये आपको शायद याद ना रहे, तो उसके लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हियर कि एक टेलीग्राम ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं। आपके चैट बॉक्स में भी अभी उसका लिंक आने वाला है, और आपके ऐप के अनाउंसमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक आ जाएगा। विल और शो जो यू दैट। और जो प्रीलिम्स नेविगेटर कोर्स आपने ज्वाइन किया है वहां भी हम उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे। प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे बस आपके साथ, कि ताकि आप कोई टेस्ट भूलो ना कि कल इस टॉपिक का टेस्ट है, इस दिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एलएमएस है, इस दिन इस पर्टिकुलर टॉपिक का पीवाईक्यू डिस्कशन है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लासेस विल आल्सो बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप कुछ भूले ना, है ना। क्योंकि यहाँ पे डेली टारगेट्स हैं, यहाँ प्लानिंग है, तो हम चाहते हैं एक तरीका रहे आपसे रेगुलरली कम्युनिकेट करने का। वो उस टेलीग्राम ग्रुप पे होगा, आपस में बात नहीं होगी उस टेलीग्राम ग्रुप हाँ पे। ठीक है, तो अगर आप उस पर्पज से आ रहे हैं तो ज्वाइन ना करें, बट अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो प्लीज ज्वाइन करें। ठीक है। अब आई थिंक नाउ वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट कि अगले 7 दिन में हमें क्या करना है। ठीक है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इकोनॉमी करना है ना। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट मेंटरशिप सेशन ऑफिशियली। आज का सेशन बहुत छोटा होगा क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी की डिस्कशन है, टारगेट्स हैं। अगले वीक से ये सेशन अराउंड 2 आवर्स लास्ट करेंगे, क्योंकि एक्टिव रिकॉल भी होगा। आइडिया क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए, फीचर्स क्लियर हो गए, अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लें। यस लिख दो यार एक बार, एंड प्लीज नाउ अगले हफ्ते में जो करना है उस पर फोकस करते हैं, है ना। लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट वीक। एक बार यस लिख दो चैट में, एक बार यस लिख दो यार चैट में प्लीज। जस्ट राइट यस इन द चैट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बात हम आपको कह रहे थे दैट देयर इज अ टेलीग्राम चैनल। आप, मैं आपको दिखा भी दूंगा आप उसको कहाँ देख सकते हो। राइट, आपको दिखा भी दूंगा उसको कहाँ देख सकते हो। अब प्लीज सुन लो, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज हियर इफ यू डोंट लिसन। ओके, तो प्लीज ध्यान से देख लो अब कि अगले 7 दिन में हमें क्या करना है। ठीक है, देखो यार मुझे पता है कि आप में से कई लोग मेंस भी पढ़ रहे हो। राइट, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर रीडिंग मेंस एट द मोमेंट एंड दैट्स फाइन। हमें आधा दिन देना है पहले तो मेन से कंसोलिडेट करने के लिए। हाफ डे आई वांट कि आप प्रीलिम्स को दो। राइट, अराउंड 3 to 4 आवर्स आप प्रीलिम्स को दो, बाकी टाइम आप मेंस को दे सकते हो। पहला क्वेश्चन ये होगा ही दिमाग में। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या आपने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, गिव मोर टाइम। राइट, अदरवाइज हाफ ऑफ योर डे टू प्रीलिम्स, हाफ टू मेंस शुड बी ओके। अब अगले 7 दिन का आइडिया समझते हैं। देखो यार, देर आर दीज टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन द नेक्स्ट 7 days। कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक्स हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी कि जीडीपी कैलकुलेशन, जीएनपी कैलकुलेशन एक्सेट्रा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये 4 टॉपिक हमें कवर करने हैं नेक्स्ट वीक में। तो अब पहले मैं आपको थोड़ी सी बात कर लेता हूं अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, पहले सब्जेक्ट जो हमें करना है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमें टॉपिक करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। राइट, ये दिस इज योर एंटायर नेक्स्ट वीक। थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑनेस्टली, बट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। राइट, सो एक लेवल से ज्यादा इस पे अटेंशन देने का कोई रोल नहीं है।
इसमें ग्राफ्स वगैरह होते हैं, अगर आपको ज्यादा समझ ना आए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड दैट मच, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें करना है, बेसिक। अब इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स रहते हैं जनरली, इसमें हमें डिमांड और सप्लाई समझना होता है, इसके ग्राफ समझने होते हैं, बेसिक लेवल पे ग्राफ समझने की कोशिश करें। एंड अगर आपको लग रहा है यार समझ नहीं आ रहा है, दिस इज गोइंग बियॉन्ड मी, मैं मैथमेटिकली या ग्राफ वाइज नहीं सोच सकता, आप छोड़ सकते हो, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे पढ़ सकते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा, कम फोकस किया जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अदर पार्ट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट विल बी आस्क्ड डायरेक्टली। आप हर बार कोई मुझसे पूछता है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इतना फोकस क्यों करते हो, डायरेक्टली नहीं आता माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इसके ग्राफ यूज करके और बहुत सारी चीजें समझी जा सकती है, राइट। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल। एक चीज को मैं पढ़ता हूं, देखो पढ़ने के दो तीन तरीके हैं, एक चीज को मैं पढ़ता हूं कि यार इससे ही एमसीक्यू आना है तो मैं हर लाइन ध्यान से पढ़ता हूं, एक चीज को मैं पढ़ता हूं ये समझने के लिए कि यार ये कंसेप्चुअल आइडिया है, इस कंसेप्चुअल आइडिया से, इस कंसेप्चुअल आइडिया को दिमाग में रखते हुए अब आगे जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत चीजें समझ आ जाएंगी, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया यू नीड टू गेट, कंसेप्चुअल आइडिया यू नीड टू गेट, डोंट नीड टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। ये बात समझ आई, ठीक है। ये है जो हमें पहली चीज पढ़नी है। देन सेकंड टॉपिक वी हैव टू रीड दिस वीक इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इस टॉपिक में क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी के मेथड्स, जीडीपी की डेफिनेशन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि यार एक शिप पे एक्टिविटी हो रही है इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में, बट एक अमेरिकन कर रहा है, तो जीडीपी में काउंट होगा या जीएनपी में कैलकुलेट होगा। फिर जीएनपी से एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि यार मेथड्स कौन कौन से हैं, इंडिया की जीडीपी मेजरमेंट होती कैसे है, व्हाट इज हेडलाइन जीडीपी इंडिकेटर, व्हाट इज जीवीए, इसमें इस टाइप की चीजें होती हैं, बेसिक प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये चीज रहती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपके कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हियर आर एंड यू कैन नोट दीज डाउन। पहले ये कैलकुलेशन एंड मेथड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कैलकुलेशन और मेथड्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा। दूसरी चीज फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइस, इनमें एक रिलेशनशिप होता है ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस, वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने इस वीक कवर करना है। एंड लास्टली इंडियाज मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, कि इंडिया कैसे जीडीपी मेजरमेंट करता है, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू विल रीड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दिस इज ऑल्सो फेयरली इंपॉर्टेंट। The next topic that we have to read this week is poverty. I am 100% expecting a question on poverty measurement in the upcoming prelims. Why? Because 2025 मई में जब prelims हो रहा था, I think उसके 4-5 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है that India has removed record number of people from extreme poverty. आपने अभी रिसेंटली न्यूज में भी देखा होगा कि केरला इज अ स्टेट दैट इज क्लेमिंग दैट दे हैव एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो यहां पर डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू देने वाले लोगों को नहीं पता है हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया। आप उनसे पूछोगे वो जवाब देते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या, डेफिनेशंस, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, राइट। अगर कोई बोल रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी तो इसका मतलब क्या होता है, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया। Poverty in India is measured on the basis of household consumption expenditure survey, on the basis of head count ratio, on the basis of Tendulkar poverty line, on the basis of modified recall period. ये एक पढ़ा लिखा यूपीएससी एस्पिरेंट का आंसर है जो मोस्ट लोगों को नहीं पता, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहां पर दीज डेफिनेशंस, व्हाट इज पॉवर्टी इन मॉनेटरी टर्म्स, वर्ल्ड बैंक की मेजरमेंट और इंडिया के मेजरमेंट में क्या फर्क है, पॉवर्टी मेजरमेंट क्या हम बीपीएल एपीएल को हम मेजरमेंट नेशनल प्रोग्रेस के लिए करते हैं या हम बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए करते हैं, या वहां पर कुछ एससीसीसी नाम का है, ये चीज आप यहां पढ़ोगे, राइट। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले तो ग्रेट, नहीं तो आप इन लेक्चर्स को यूज कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा लेक्चर्स कैसे यूज करने, ये बात याद रखना है। एंड आई होप यू आर नोटिंग ऑल दिस डाउन। पॉवर्टी में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होंगी इस बार बहुत, दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि यार एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी पे बहुत लाइकली क्वेश्चन है, बहुत डिस्कशन हुई है, करंट अफेयर्स में भी रहा है, मैं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स में, बट यहां पर भी उसका बेसिक हमें पढ़ना है। लास्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमें इस वीक करना है। अब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन प्रीलिम्स इज अगेन अबाउट अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस। जैसे अगर मैं आप में से पूछूं कि क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड हो सकता है आप में से कई लोग बोलो हाँ, बट आंसर नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। टू बी अनएम्प्लॉयड यू हैव टू बी लुकिंग फॉर अ जॉब एंड देन नॉट फाइंड अ जॉब। तो यहां पर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, व्हाट इज वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो, राइट, हाउ डू वी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें करंट वीकली स्टेटस है, करंट डेली स्टेटस है, यूजुअल स्टेटस है। इस पे मेंस 2023 में क्वेश्चन आया था। अगेन डेफिनेशंस मैटर। तो आपको अगर जानना है कि क्या मुझे समझ आ रहा है, यू शुड बी एबल टू टेल मी हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यूपीआर का फॉर्मूला क्या है, एलएफपीआर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। डेफिनेशनल इंपॉर्टेंस है इन सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक हैं इनमें ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आई होप थोड़ा सा अब आप ध्यान से सुन रहे हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि ये 4 में फोकस किन चीजों पे करना है, पढ़ना कैसे उस पर भी आऊंगा। मेरा काम यहां पर यही है, आपको बताना कि पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। समझ आ रहा है? अभी है पढ़ना कैसे है, इसके बाद आऊंगा पढ़ना कहां से है, फिर आऊंगा पढ़ना कब है, ठीक है। राइट नाउ इट वाज हाउ। वाई तो क्लियर ही है, हाउ क्लियर हो गया कि यार जब पढ़ रहे हो इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे मैं पॉवर्टी पढ़ रहा हूं, किसी भी बुक से पढ़ रहा हूं, आई शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ना बिफोर हैंड। मैं आपकी बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टडी, कौन सा सोर्स यूज करें इन सब्जेक्ट्स के लिए। देखो, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज विल बी wherever you have already studied from। आपने अगर कहीं पहले से पढ़ा हुआ है उसको इग्नोर नहीं करना। देखो, कोई भी नया सोर्स होगा, चाहे आप मेरे लेक्चर्स यूज कर लो, आपके लिए अगर नए हैं तो प्रॉब्लम है, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, राइट। सो ऑलरेडी यू हैव रेड, इफ यू हैव रेड ऑलरेडी, देन यू दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सोर्स दैट यू कैन यूज। इससे बढ़िया सोर्स नहीं है, जहां से भी पढ़ा हो, राइट। अब अगर आपको लगे कि यार मैंने ऑलरेडी पढ़ा था एक जगह से, वहां पर मैंने पॉवर्टी पढ़ा था, बट वहां पर ना यार मेरे को ये डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी वगैरह समझ नहीं आया, एक गैप दिख रहा है मुझे, मैं अभी आपको बहुत डिटेल टारगेट्स देने वाला हूं, तो आपको समझ आ जाएगा मेरी ऑलरेडी रेड थिंग में एक गैप है। उसके लिए क्या करना है, उसी के लिए हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हैं। तो ये प्रीलिम्स नेविगेटर का आपका डैशबोर्ड है, जो वरुण सर आपको टेलीग्राम चैनल बता रहे थे, राइट, वो यहाँ पे है। अनाउंसमेंट्स में जाएंगे, यहाँ टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है। सर जैसे बता रहे थे कि अनाउंसमेंट्स में लिंक होगा, वो ये रहा। अब कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट लेक्चर्स में जाएंगे, इकोनॉमी में जाएंगे, इकोनॉमी में जाएंगे, इकोनॉमी लेक्चर्स में। इसको ऐसे नहीं देखना 1 2 3 दी, आपको देखो यहाँ पे कहीं लिखा है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये वैसा है ही नहीं। ये है ऐसा कि जहां गैप हो वो आप यूज कर लो। जैसे अब पॉवर्टी है, ठीक है, मैं पॉवर्टी पढ़ रहा हूं, अब पॉवर्टी का ये सेशन है। पॉवर्टी के इस सेशन में आप सिर्फ वो चीजें देखें जहां आपको लगे यार गैप है। आपने ये सेशन देखा, आप थोड़ा आगे देखो, यहाँ पे अब जैसे मैं यू एक्चुअल आपको यूज करके दिखाता हूँ। थोड़ा वियर्ड है, अपनी खुद की वीडियो देखना, बट कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब डेफिनेशन है। सबसे पहले अगर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी आती है तो इसको आगे कर दो, राइट। नोट्स भी आपके पास होंगे, उसी ऑर्डर में पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप पढ़ा रखा है, अगर आपको आता है तो आगे कर दो। जहां जहां गैप मिले सिर्फ उसी चीज को आपने पढ़ना है, एज इट इज बैठ के पूरा नहीं देखना है, ठीक है। पूरा बैठ के रट के देखना नहीं है, जहां जहां गैप मिलता है उसको आपने पढ़ना है। अब आपको कैसे पता चलेगा यार यहाँ पर ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर पूरे नोट्स दिए हुए हैं, राइट। सो यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स एंड जहां जहां गैप लगे उनको फॉलो करें, पूरा खुद से नया ना पढ़ें। नाउ इकोनॉमी में स्पेशली देयर विल बी पीपल
जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा या उन्होंने पहले से जो पढ़ा होगा वो बेकार होगा। ठीक है, आपसे मैं बात कर सकता हूँ खुल के, तो खुल के बात करते हैं। वॉट इफ माई प्रीवियस सोर्स वॉज यूजलेस, जिन्होंने मुझे सिर्फ इकोनॉमी रटवा दी और मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, तो अब क्या करूं मैं, राइट, अब तो मैं फंस गया। देन यू कैन फॉलो दीज लेक्चर्स। अगेन देखो बोर्ड पे क्लियरली लिखा है, बेस्ट है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बेसिक लेवल पे आता है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, लेक्चर्स को यूज करके गैप फिल करो। सेकंड, अगर कहीं से नहीं पढ़ा हुआ तो ये लेक्चर्स फॉलो कर लो। ठीक है, दे आर जेन्युइनली गुड। लास्ट ईयर देयर वर 17 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, 14 वर फ्रॉम दीज लेक्चर्स। दे आर जेन्युइनली गुड, बट अगेन ये बात बोलने के बाद भी अगर पहले पढ़ा हुआ है तो उसको करना। सिर्फ इकोनॉमी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि कोई स्टैंडर्ड सोर्स है नहीं एंड मोस्टली इकोनॉमी लोग रटवाते हैं। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, जी सर। इकोनॉमी में आपको यूजलेस कब लग सकता है, यू माइट हैव स्टडीड फ्रॉम सम एजुकेटर जो इकोनॉमिक्स प्रेजेंटली जो यूपीएससी सीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं, है ना। राइट इकोनॉमिक्स इवॉल्व हुआ है राइट। ना। जैसे मेरे टाइम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे आज उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। काफी कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स यूपीएससी पूछने लग गया है। वो जो बेसिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो, इन पे जो चीजें होती थी वो यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, थोड़ा Right. इवॉल्व हो गया है। कैपिटल मार्केट भी Right. पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है। राइट तो अगर आपको लगता है कि किसी आउटडेटेड टीचर से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, देन यू मस्ट वॉच दीज लेक्चर थॉरली, ठीक है। यूजलेस का ये मीनिंग है। एंड अगेन यहाँ पर एक कहानी सीधी सी है कि कई बुक्स भी हैं, राइट, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, देयर आर मेनी बुक्स दैट यू माइट हैव रेड जिन्होंने इकोनॉमी को स्टोरी की तरह समझाया हुआ है, नहीं है वैसा। ठीक है, लोगों ने इकोनॉमी को ट्राइड टू ओवर सिंप्लीफाई इट, इट्स नॉट सिंपल एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। राइट है ना, दुनिया से कंट्रोल नहीं हो रही इकोनॉमी तो सिंपल तो नहीं होगी, राइट। इट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एवरी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ करानी है, इट मस्ट नॉट बी दैट इजी, राइट। तो अगर ऐसा है कि यार पुराना सोर्स मुझे लग रहा है यूजलेस है, कि यार अब इससे कुछ नहीं हो सकता, यूजलेस इसलिए भी हो सकता है कि सोर्स तो बहुत अच्छा था बट मेरे को बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, वो नोट्स देख के नए लग रहे हैं कि मैंने ही पढ़ा हुआ है, ये मैंने ही नोट्स बनाए हुए हैं, अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचानी जा रही है, तो वो यूजलेस है। तो यूजलेस दो तरह से हो सकता है कि जिसने पढ़ाया है उसने पढ़ाया ही नहीं यूपीएससी के फॉर्मेट पे, बुक जो है वो है ही नहीं यूपीएससी के फॉर्मेट पे, या दूसरा आपने जो पढ़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। अगर वैसा है फॉलो दीज लेक्चर्स। और ये बात मैं सिर्फ इकोनॉमी के लिए बोल रहा हूं, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स में क्योंकि एक स्टैंडर्ड सोर्स अवेलेबल है, पॉलिटी में डिस्कशन होगी नहीं ना, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये अब समझ आ गया फ्रॉम वेयर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक्स ओनली, राइट क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, राइट, ज्योग्राफी की वहां बात पे एक करें, स्टैंडर्ड सोर्स अवेलेबल है स्टैंडर्ड सर, यहाँ सोर्स पर नहीं है ना, और सिलेबस का कंटूर्स भी वेरी वेल डिफाइंड है। अब ये वेयर समझ आ गया, पीआरपी नोट्स आर इनफ, ये पीआरपी ही तो है यार, पीआरपी नोट्स आर इनफ, मेरे से पढ़ा है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पीआरपी नोट्स आर, पीआरपी फाउंडेशन नोट्स आर इनफ, एब्सोल्युटली इनफ, मेरे से पढ़ा है उनको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेंस के नोट्स क्यों फॉलो करोगे यार, प्रीलिम्स के में मेंस के थोड़ी फॉलो करोगे। मैं किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपकी जजमेंट है, आई विल नॉट मेक एनी कॉमेंट ऑन एनी टीचर, वो बनता भी नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो मैं आपको एनसीईआरटी रेकमेंड नहीं करूंगा, मैथमेटिकल है, टाइम लगेगा। अगर पहले पढ़ी हुई है तो फिर बहुत बढ़िया, अगर आती है तो बहुत सही है। एनसीईआरटी 11-12 की जो एनसीईआरटी है बहुत अच्छी है, पहले पढ़ी हुई है तो बहुत सही है, अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैथमेटिकल है, इट्स नॉट लाइक इट्स बैड, मैंने भी एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ है इन लेक्चर्स में, बट मैथमेटिकल है काफी। ठीक है, अब हाउ टू फॉलो, अब हो गया, पहले हो गया हाउ टू स्टडी, अगले 4 टॉपिक्स जो पढ़ने हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रॉम वेयर टू स्टडी हो गया, अब कैसे, राइट, एग्जैक्टली कैसे करना है इसकी बात करते हैं। देखो ये चीज मैं आपको लिख के, दिस विल बी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल शॉर्टली, Day 1 to Day 7 के टारगेट्स। आज का टारगेट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज आई नो ऑलरेडी ओरिएंटेशन हो गया है, आपकी 1-2 और क्लास भी हो सकती हैं और आप थोड़े थक भी सकते हो, तो आज मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कल से आप ये देखोगे जो आपने आज पढ़ना है ना उसका टेस्ट कल है, ये आपने देखा है, आज आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अब ये लॉजिक हमने आपको क्लियर करवाया था कि कल इसका टेस्ट होगा, वॉट एवर यू रीड टूडे देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो। तो आप सिंपली टेस्ट का सिलेबस देख सकते हो कि टेस्ट में कल क्या क्या आएगा, वो मुझे आज खत्म करना है। तो कल क्या आ रहा है टेस्ट में, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्जिनल यूटिलिटी,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व यहां पर इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटीज, लॉ ऑफ सप्लाई एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। तो आज मैंने क्या करना है, मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ने हैं और कल यानी कि ट्यूसडे को मुझे उसका टेस्ट देना है। ट्यूसडे को मुझे क्या करना है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बचा वो खत्म करना है और एनआईए नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट करना है। अगले दिन फिर उसका टेस्ट है और वेंसडे को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग खत्म करेंगे। सो टुडे आई जस्ट स्टार्ट अगेन, मंडे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्यूसडे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बचा एंड फर्स्ट हाफ ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वेंसडे विल कंप्लीट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ओके। थर्सडे विल डू अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़ रहे हो उसका अगले दिन टेस्ट है। जैसे कल नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा था तो थर्सडे को नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टेस्ट है। फ्राइडे वी विल कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्ट विद पॉवर्टी, एंड सैटरडे वी विल फिनिश द पार्ट ऑफ पॉवर्टी। ये टारगेट है। अब मैंने इस हिसाब से बनाया है, टेस्ट भी उस हिसाब से बने हैं। आई विल गिव यू द डिटेल्ड डेली टारगेट्स ऑल्सो, ये आपके पोर्टल पे अभी दिख जाएगा आपको, विद इन 1 आवर इट विल बी ऑन योर पोर्टल, जिसमें डिटेल्ड टारगेट्स होंगे। अब मैंने ये सोच के बनाया है कि आप दिन में 4 से 5 घंटे इसको देंगे एंड आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। देखो यार, अगर आप इकोनॉमी पहली बार पढ़ रहे हो तो दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। अब ये तो बहुत मुश्किल है यार कि आप 2026 में पेपर दे रहे हो एंड नवंबर तक आपने इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ी। आई नो सम ऑफ यू विल बी इन दिस सिचुएशन, बट दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, देन मोर एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, है ना यार। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा इज अ फंक्शन ऑफ अस। मैंने पहले से इकोनॉमी पढ़ा है, जैसे किसी ने मेरे से फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा, उसको बहुत आसान लग रहा होगा ये, है ना। फाउंडेशन वालों लग रहा है ना आसान, आई एम श्योर लग रहा होगा। बट अगर मैंने पहले नहीं पढ़ा तो मुझे अभी एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अल्टीमेट जो फाइनली होना है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। जो सबके लिए होना है वो सेम है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं टारगेट यही है। आई गिव यू द डिटेल टारगेट्स ऑल्सो। डे 6 तक टारगेट ये है, ठीक है। फाउंडेशन वाले होंगे तो उनको तो आई एम श्योर होगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं एक हफ्ते के लिए, दिस इज नॉट इवन 2 days वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। अब टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है। टेस्ट का भी शेड्यूल देख लेते हैं। कल आपका पहला टेस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, 25 क्वेश्चन होंगे, ये टॉपिक्स होंगे। पहली सिलेबस लीक कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब लाओ 25 में से 25 इसमें, ओके। Wednesday again you will have a test, the topics are here. I will upload this document within 1 hour on your portal. तो टेस्ट के भी टॉपिक्स आपको उस डॉक्यूमेंट में दिख जाएंगे, ठीक है। डन। अब सैटरडे को आपका पहला एक्चुअल मेंटरशिप सेशन होगा, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअली पढ़ाई होती कैसे है। सैटरडे को ये जितना भी हमने इस वीक में लिखा हुआ है, वॉट एवर इज रिटन दिस वीक, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका एक्टिव रिकॉल सेशन है। और यहां अगर तुमने एक्टिव रिकॉल में गलतियां करी फिर देखना तुम, ठीक है। आई विल कॉल आउट योर नेम्स एंड आस्क यू टू आंसर एंड यू विल हैव टू। अनफॉर्चुनेटली क्लास ऑफलाइन नहीं है, वरुण सर मेरी बात नहीं मानते ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं वहां पे खड़ा करके तुमसे आंसर कराता, बट मैं ये वहां भी मैनेज कर लूंगा, ठीक है। एक्टिव रिकॉल होगा और एक जबरदस्त 50 to 70 क्वेश्चंस का हम एक्टिव रिकॉल करेंगे इस दिन। हमें इसको सील करना है सैटरडे को। ये 4 टॉपिक कंसेप्चुअल हैं। देखो कंसेप्चुअल चीज लंबे टाइम तक याद रखी जा सकती है। चारों टॉपिक कंसेप्चुअल हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सैटरडे को इसको सील कर देते हैं कि यार मुझे आ गया, ठीक है। अब ये 4 टॉपिक में गलती नहीं होनी, लेट्स मूव ऑन। एंड इस चीज को फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए संडे को फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। संडे को फुल लेंथ टेस्ट है, वीकली एफएलटी है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब होता है 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है ऑन दीज 4 टॉपिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी, एनआईए एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन 4 पे 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। देखिए टेस्ट का जो फॉर्मेट रहेगा, टेस्ट चाहे 25 क्वेश्चन का हो या 100 क्वेश्चन का हो, बाय 9 AM आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, है ना। आप जैसे किसी भी ऐप पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से आप सारथी की ऐप पे या वेब पे जाके टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके बाद जब उसे आप सबमिट करेंगे तो एनालिटिक्स भी आएगा, आपने क्या परफॉर्मेंस किया, कहाँ पे क्वेश्चन आपने सही किए, कहाँ पे क्वेश्चन आपने गलत किए, ठीक है। तो वो टेस्ट अगर आप एवरी डे एट 9 AM वी विल अपलोड द टेस्ट, आप उसको 9 AM पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप पूरे दिन में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली टेस्ट में दिस फ्रीडम वी आर गिविंग यू, राइट। बट वी विल सजेस्ट यू कि उसका बैकलॉग मत क्रिएट होने दो। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है यार, 9 बजे अपलोड होता है, 9:30 बैठो, हाँ 10 बजे तक, 10 बजे से पहले खत्म कर दो। राइट सुबह उठ के माइंड फ्रेश होता है। पहला, इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग, ईट योर फ्रॉग्स फर्स्ट। राइट जो मुश्किल काम है वो पहले करके खत्म करते हैं। टेस्ट में हमेशा आलस आता है। स्टार्ट योर डे विद इट। वैसे भी पढ़ने का मन करेगा व्हेन यू स्टार्ट विद एन एमसीक्यू, बिल्कुल सेट ऑफ एमसीक्यू, तो आपको मन करेगा पढ़ने का उसके बाद कि यार अच्छा टेस्ट किया, अच्छा लगा। हमेशा अच्छी फीलिंग आती है। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम, करते हुए बेकार लगता है, वापस आके बढ़िया लगता है। राइट राइट, तो जस्ट स्टार्ट योर डे विद इट। ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है और स्टार्ट ऐसे करना है। राइट इफ यू स्टार्ट योर डे विद इट, आप ये करके देख लो, ठीक है, 6 days आप ये करके देख लो कि मैं रोज उठ के टेस्ट दूंगा 25 क्वेश्चन का, एंड यू विल कम एंड टेल मी द डिफरेंस ऑन सैटरडे कि मेरी प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी इट फ्रॉम, क्या टारगेट्स हैं, क्लियर है। और ये कमिटमेंट दे रहे हो कि 6 दिन टेस्ट रोज करोगे, राइट ये कमिटमेंट दे दो, जस्ट खराब 30 हो जाए। minutes, just ठीक 30 है, minutes we are asking। 25 के 25 क्वेश्चन गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेक ऑल 25 क्वेश्चन रॉन्ग, दैट्स ओके। बट कर दो। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, अब एक दो चीजें और, जस्ट बिफोर आई एंड दिस सेशन आई हैव अ कपल ऑफ अदर थिंग्स टू से टू यू। पहले, दिस इज नॉट द लास्ट सेशन, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, ये पहला सेशन है, तो अभी और बहुत कुछ है जो हमें करना है। राइट, जो सैटरडे को हम मेंटरशिप लेंगे, आई प्रोमिस यू, यू विल बी अमेज्ड, इंक्लूडिंग द फैक्ट मेरे पास इस चीज का भी डेटा होने वाला है कि इन टेस्ट में कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब गलत कर रहे हैं, तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये वो चीज है जो लोगों को नहीं समझ आ रही। इस क्वेश्चन में लोगों का टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब ये आप जल्दी एनालाइज नहीं कर पा रहे। राइट, इस सब्जेक्ट में दिक्कत ज्यादा आ रही है, और उस हिसाब से एक्टिव रिकॉल क्यूरेट करूंगा मैं। सो आई विल स्टडी वट एवर यू डू थ्रू आउट द वीक। बैकएंड में हमें वो एनालिटिक्स मिलते हैं, और उस बेसिस पे आपका एक्टिव रिकॉल क्रिएट होगा ताकि आप सब कुछ आंसर कर सको। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। नाउ वन मोर थिंग, अगेन अब आपको फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, यार इकोनॉमिक्स में तो करंट अफेयर्स भी होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, बजट भी होता है। आई नो यू विल हैव दिस फीलिंग। अगेन द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस कोर्स इज कि आप टेंशन ना लो और मैं ले लूं आपकी जगह। ठीक है, आई हैव इनॉर्मस एबिलिटी टू अब्सॉर्ब प्रेशर, यू गिव योर प्रेशर टू मी, यू जस्ट फॉलो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू। आप ये कर लो, इसको मिस मत करना। ठीक है, अब आपके सामने क्लियर टारगेट्स हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके पास अपना सोर्स है, नहीं तो मैंने आपको लेक्चर्स भी दे दिए, नोट्स भी दे दिए। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि मैं आपको डेली टेस्ट भी दे रहा हूं। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि मैं सैटरडे आके आपकी वीकनेसेस के हिसाब से आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। सच बताओ यार, इज देयर लिटरली एनीथिंग मोर दैट आई कैन डू? ऑनेस्टली बताना, अब तो आप पे है ना। जाके पेपर दे सकते हो इसके अलावा और तो सर कुछ वो नहीं किस बचा है। एक का ही दे सकूंगा सर, वो भी। राइट इज देयर एनीथिंग मोर वी कैन डू फॉर यू? राइट है ना? तो देखो यार, एक मेंटर, एक कोचिंग, एक टीचर, जो भी एक जर्नी में आपका रोल प्ले कर सकता है, दैट वी आर प्लेइंग, है ना। लेकिन उसके बियॉन्ड एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। वी आर फुलफिलिंग आवर पार्ट, उसके बियॉन्ड एफर्ट आपका ही है। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। और मैं आपको अभी बता देता हूं, हमारा रोल मैक्सिमम हद मचा के 10% है, बाकी आपका ही है। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। इसी बैच से मैं आपको, एंड बिकॉज वी सीन दिस रिसेंटली, राइट पीआरपी से लास्ट ईयर मोर देन 100 पीपल आर गिविंग द इंटरव्यू। ठीक है, आप इसी बैच से देख लेना, लोग सिलेक्ट होंगे जो इसी चैट में बैठे हैं। कंटेंट तो सबको सेम मिल रहा है, मतलब कंटेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू। हमने अपने साइड से प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया है कि आपको ना कोई टेंशन लेनी पड़े, ना आपको प्लानिंग का कोई इशू हो, और आप रेगुलरली हमसे बात भी कर सकें। सो फ्रॉम आवर साइड वी हैव डिजाइन द प्रोग्राम टू एंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट सपोर्ट पॉसिबल, एंड वी एंश्योर दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे पाओगे। ये हमने डिसाइड किया है। अब
वो एबिलिटी आप कितनी खुद एक्सरसाइज करते हो, दैट इज ऑन यू। आप उतना एफर्ट डालोगे, यू विल रीप द डिविडेंड्स। आप मजाक करोगे, आसानी से लोगे, आप यू विल बी लैक्स, यू विल हैव एट, यू विल नॉट गेट द डिविडेंड्स। इट इज नाउ एब्सोल्युटली अप टू यू। आई कैन सी वन कमेंट जो खुशबू ने लिखा है, इट्स टू मच। यस, इट्स टू मच, है ना, हम एग्री करते हैं। हाँ है, राइट। रिमेंबर दिस थिंग, है ना, वी आर नॉट फेथ हीलर्स, है ना, जो कि हम आपको ये बोले कि सब हो जाएगा, आसान है, लाइफ इज इजी, यूपीएससी क्रैक करना आसान है। सारथी आईएएस हैज डज नॉट हैव दिस पेडिग्री, है ना, इमोशन वाले नहीं है हम, Right. सिलेक्शन वाले हैं। ठीक है। तो ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यस डिफिकल्ट है, एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट है, और इसीलिए आपको करना है ना। अगर ये बहुत आसान होता तो आपको करना भी नहीं होता, है ना। वी ऑलवेज वांट टू डू डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ, राइट। Right. ठीक है, तो डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि बस इसको फॉलो कर लो, है ना। आपका जो हार्ड वर्क है वो रिजल्ट जरूर देगा। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो ना सालों से। आप में से Right. काफी सारे लोग होंगे जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, है ना, पढ़ तो रही हो 3-4 सालों से। प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन लेस पढ़ रहे हो, है ना। वी आर चॉकिंग आउट अ डायरेक्शन फॉर यू, इस डायरेक्शन को फॉलो करो और उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज द Right. पॉइंट। ठीक है, Right. तो कमिटमेंट है भाई, करोगे मेहनत दबा के इस बार। सर अभी पता चल जाएगा, सैटरडे को सेशन होगा। Right. हमें तो डेटा दिख ही जाएगा कितने लोगों ने टेस्ट दिया, अभी देख लेते हैं। डन है, तो करें। शिविन सर को चैलेंज की इस बार हम पढ़ेंगे और एक्टिव रिकॉल में 90% ले करके आना एक्टिव दिखाएंगे। रिकॉल में, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। 90% इन एक्टिव रिकॉल में मान जाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें आता है। ट्वाइस ठीक है। टेस्ट का जो लिमिट रख रहे हैं वो ट्वाइस रख रहे हैं, 2 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगेन दिस इज नॉट द लास्ट सेशन, दिस इज द फर्स्ट सेशन। नोट्स भी अपलोडेड हैं, पोर्टल खोल के तो देखो एक बार। ठीक है। सो अगेन वी विल नाउ मीट ऑन सैटरडे फॉर आवर फर्स्ट एक्टिव रिकॉल सेशन। उसमें हम नेक्स्ट वीक के टारगेट्स भी सेट करेंगे और इस वीक का एक्टिव रिकॉल करेंगे। चैलेंज इज फॉर यू टू डू 90%। 90% आपने, उस दिन 50 क्वेश्चन है, आपको 45 सही करने हैं। ठीक है, डन। एंड यस, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर हो या लाइव लेक्चर हो, सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच दैट, है ना। लाइक समबडी सेइंग कि सर टेस्ट हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक बच्चा भी जब बड़ा होता है, माय सन इज ग्रोइंग नाउ, ही स्टार्टेड ईटिंग, तो वो भी खुद खाना सीख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ऐसे ही जब आप पोर्टल पे ऐप पे कुछ यूज करेंगे ना, जब आप देखेंगे कि यार अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बस हमें क्लिक करना है ABCD में से, ठीक है, तो यू विल लर्न इट दैट वे। तो एक्सप्लोर द पोर्टल, Right. यूज इट, इट्स मेथोडिकली डिजाइंड। आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, करके देखो। और अभी तो मिल रहे हैं सैटरडे को, कोई दिक्कत आ भी गई तो सैटरडे बता देना। हाँ, ये भी अच्छा एक क्वेरी है। टेस्ट का PDF हम अपलोड करेंगे, बिकॉज देयर विल बी सर्टेन स्टूडेंट जो ऐप पे ना प्रैक्टिस करना जो चाहे, प्रिंट करके करना print चाहे करके वो भी करना कर सकते हैं, चाहे, दैट्स ओके, दैट्स अप टू यू। दैट वी विल आल्सो डू। ठीक है, ऑलराइट। तो सैटरडे मिलते हैं। इस वीक हमारा और कोई लाइव सेशन नहीं है, सैटरडे को ही है। नेक्स्ट वीक से हमारे LMS और PVIQ भी स्टार्ट होंगे, राइट। सो विल नाउ सी यू ऑन सैटरडे। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। सैटरडे मिलते हैं। ले आओगे 90% सैटरडे को? 9 AM टेस्ट का टाइमिंग 9 AM। 90% सैटरडे, डन। 50 क्वेश्चन होंगे, 45 सही करने हैं। इन्हीं चारों से पूछूंगा, मेरे ही नोट्स हैं, नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, सैटरडे को ही पूछूंगा। आप सही कर देना 90%। एंड आई कुड सी सर्टेन पीपल आर सेइंग कि सर हाँ हमारा कंटेंट एज वी हैड डिफाइंड यूजलेस है। अगेन अगर आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है और तो आप है बेस यहाँ पे। प्रोग्राम में है, अगर कुछ लोग बेस प्रोग्राम में आई थिंक, है Right. ना, आप हमें मेल डाल दीजिए ask@sarthi.com पे, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड इफ यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट गाइस, ठीक है। भाई प्रीलिम्स क्रैक करोगे इस बार? लंबा गोल नहीं रखते सर, हाँ एक्टिव रिकॉल में 90% लेके आओगे। राइट, ये शॉर्ट। हाँ, एक हफ्ते की बात करते हैं, बाकी छोड़ दो, बाकी हम बैठे हैं उसके लिए। CSAT we will do in December. How you can actually complement this prelims preparation with MMP. आपको ये पता होता अगर आप MMP के लेक्चर अटेंड कर रहे होते, ठीक है ना। मैं लास्ट MMP के 3 लॉस के सेशन में बार बार ये बता चुका हूँ कि अगर कुछ लोग प्रीलिम्स रिवीजन अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेविगेटर में, हाउ दे कैन एक्चुअली मर्ज देयर मेंस प्रिपरेशन विद द प्रीलिम्स रिवीजन, राइट। तो प्लीज अगर आप MMP फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वहां पे लाइव लेक्चर में लॉज में जो पिछले वीक हुए हैं इकोनॉमिक्स के, Right. वहां पे मैंने मल्टीपल टाइम बताया, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल सी यू ऑन सैटरडे। सैटरडे मिलते हैं, डन। ठीक है, डन है गाइस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।